पुरुषोत्तम है। हमारे लिए रामायण में क्या है, जब हम ये जानेंगे, हम भगवान की लीलाओं को तत्वतः जानेंगे, then the result will be we will go back to home, back to Godhead. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति. So the topic is quite important. It's a wonderful topic, and our speaker also. So His Grace Govind Mohan Prabhu. वैसे प्रभु जी इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी डिवोटी विद इन ISKCON, बट फिर भी मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रभु जी के विषय में कुछ बताना चाहूँगा. So although प्रभु जी doesn't need any much of the introduction, तो प्रभु जी गोविंद मोहन प्रभु परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र शिष्य हैं. And प्रभु जी joined ISKCON in the year 2009. So we may feel that बहुत अधिक वर्ष नहीं हुए हैं, but when we will see प्रभु जी's devotion, तो हमें लगेगा कि वास्तव में ये 2009 नहीं, ये like this is from the previous birth also कुछ है जिसके कारण प्रभु जी इतने advanced devotee हैं. So प्रभु जी is a well-known preacher in ISKCON, and he is currently staying in Ghaziabad, and Prabhuji is a congregation leader over there. So under Prabhuji's guidance, there are many families in Ghaziabad who are doing their sadhana, and they are taking up Krishna consciousness, and they are progressing very nicely over there. Prabhuji have given seminars in many of the universities, which includes MIT, Harvard, IITs, NIITs, JP, etc. And Prabhuji ने एक online drive शुरू किया था to cultivate the Krishna consciousness by the name Sumanthan, which is like churning within. हम लोगों को जिसको कहते हैं हमें मंथन करना चाहिए. So that Prabhuji started that online seminars of the Sumanthan online drive, जिससे हमें actual में क्या करना चाहिए, अवलोकन and the churning we should do within. So Prabhuji he is working in educational department in a very reputed institute, and he is on a very reputed post also. So Prabhuji have received many awards. So there are few which I would like to mention, which is Social Impact Award, the Most Innovative K-12 School Award, the Global Education Award, the Life Empowerment Award, and the list is very long. अगर मैं सारे awards बताने लगूंगा तो शायद half of the session will be over. So I'll not take much of the time, and I will request His Grace Govind Mohan Prabhu to kindly bless us and enlighten us with the glories of Lord Ramachandra. So over to you, Prabhuji, and we are very thankful to you that you accepted our request, and you took out some time from your quite busy schedule. So we are very grateful to you, Prabhu. Over to you, His Grace Govind Mohan Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Akinchan Prabhu. चैतन्य चरितामृत कहती है, वैष्णवेरा गुणग्राही ना देखी दोष, काया मन वाक्या करे वैष्णव संतोष. So what he just stated, he has, I don't know from where has he seen all these qualities, but devotees are like that. At least I will take it in such a stride that even after hearing such introduction, even I am interested in hearing what do I speak. So I mean, I don't know, I don't know how did he say that, but that's okay. Thank you for inviting me. Thank you for giving me this wonderful opportunity. ये जीव का एक बड़ा सौभाग्य है कि अगर उसका समय भगवान के गुण गाथा गाने में लगे तो इससे बड़ा सौभाग्य ना जीव का ना जीव का, दोनों का सौभाग्य नहीं हो सकता. एंड यू हैव गिवन मी सच अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी. आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव गैदर्ड हियर. क्योंकि कलयुग में इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना और वो भी भगवान की गाथा सुनने के लिए,
इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हाँ, किसी कलह के लिए इकट्ठे करना है तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप देखते हो एक परिवार का दूसरे परिवार से युद्ध है तो वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक तरफ, एक सारे हो जाएंगे एक तरफ, आ जाओ अब। But in order to hear the glories of the Lord, it is absolutely astonishing. It is very, very nectar giving. If you ask me, I'm so obliged for this opportunity. I'm grateful to all of you. I want to seek all of your blessing. There are many senior devotees who are here. So I want to offer my obeisances to all of you. Let us dive into this fantastic Ram Katha. I would only like to mention कि ये कथा ही इतनी सुंदर है कि मेरे जैसा काक भी बोलेगा तो भी सुनने को मधुर लगती है। Although I will try to serve all of you with utmost humility. तो मेरे को आदेश हुआ है 3 दिन के लिए भगवान राम चरित्र के विषय में, भगवान और उनके भक्तों के विषय में कुछ कहने का। तो 3 दिन को हम इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट डे हम अयोध्या, किष्किंधा और लंका के विषय में कुछ कहेंगे। दूसरे दिन हम एक बड़े ही ऐसे व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे जो बड़ा भयभीत है और उसकी भयभीत वाली जीवन से कैसे भय को मुक्त करना है उसके कुछ गुण सीखेंगे। वो है हमारे सुग्रीव। तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे और परसों हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार रिश्तों की अहमियत, रिश्तों को घनिष्ठ, रिश्तों को समझा जाए रामायण से और कैसे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अपने जीवन में लगाई जाएं ताकि हमारा भी जीवन सुंदर, सुखद और प्रेमी जनों से घिरा हो। इस विचारधारा के साथ हम 3 दिन हम बिताने वाले हैं। तो आज हम अयोध्या, किष्किंधा और चर्चा करेंगे लंका की। एपिसोड्स कुछ ऐसे होंगे कि मैं कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, हर जगह से रस लेने का प्रयास करूँगा। अब रसगुल्ले को चाहे इधर से खाओ या इधर से खाओ, वो है ही इतना मीठा कि क्या ही बताएं आपको। तो प्रयास करेंगे। इट इज़ नॉट अ स्ट्रीमलाइंड फ्लो बट यू विल फील एज it is a streamlined one. So we might pick up a few episodes here and there, but we will dwell deep in them. We will try to go deep in them. I hope हिंदी is comfortable. वैसे तो प्रभु जी ने पूछ लिया था, हिंदी comfortable है, इंग्लिश भी comfortable है, तो मैं इन दोनों को ही मिला दूंगा। तो मैं हिंग्लिश, ना तो इंग्लिश ना तो हिंदी, हम थोड़ी हिंग्लिश का प्रयोग करेंगे क्योंकि कुछ भक्त साउथ इंडिया से भी जुड़े हैं, कुछ बाहर से भी हैं। सो मे बी they'll find a little twist here and there, but I would still try to be in Hindi as well as I'll use some terminology of English also. So kindly bear with me. We will start with एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है तो छोटी सी पर है बड़ी पावरफुल। बिना प्रार्थना के जीव का कोई है ना हैसियत ही नहीं है। तो गुरु परंपरा से प्रार्थना करता हुआ हम आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत बार जब रामायण की या महाभारत की इत्यादि हमारे शास्त्रों की चर्चा होती है तो बहुत बार लोगों का एक बड़ा कॉमन प्रश्न होता है कि भाई ये राम जी भी भारत में, कृष्ण भी भारत में, तो क्या ये भारत भूमि है या ये भगवान पूरे विश्व के लिए हैं, या क्या ये भगवान का अस्तित्व कहीं पूरे विश्व के साथ कहीं कोई तार मिलती है या नहीं मिलती है। तो वास्तव में पहला तो क्रम ये होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। जितने भक्त मुझे सुन रहे हैं इस बात पे हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये माइथोलॉजी नहीं है। माइथ या मिथ जिसको बोलते हैं, मिथ मीन्स झूठ। तो ये झूठ कैसे हो सकता है? समथिंग दैट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम एंड दैट इज फ्रॉम टाइम इमेमोरियल व्हिच हैज बीन ग्लोरिफाइड and none of its, not even a single speck of it has been proven wrong. How can this be a myth? ये माइथोलॉजी नहीं है। एक्चुअली में रामायण महाभारत हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। किताबों में बच्चों को पढ़ा दिया गया माइथोलॉजी। मैं सुनता हूँ कई बार लोग बोलते हैं इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी नहीं, ये भारत का इतिहास है, ये सत्य है 100%। तो इस पे फेथ बड़ा ज़रूरी है। जिस प्रकार गंगा यमुना, आप में से कई लोग प्रयाग गए हो, अभी थोड़े दिन पहले तो हो सकता है गए भी हो। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है। अगर आप गए हो तो आप देखोगे एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है, और दोनों का रंग भेद भी है। आप दोनों को अलग अलग रंग से देख पाओगे, पर बोलते त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम। तीसरा गंगा यमुना सरस्वती। तो सरस्वती दिखती नहीं है, सरस्वती नीचे बहती है, वो दिखती नहीं है। इसी प्रकार ये जो हमारे शास्त्र हैं, ये कथा के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं। दिखती है कथा, लेकिन कथा के नीचे की सरस्वती वो दिखती नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। तो अगर इस भाव से हम स्वीकार करें कि भारत के दो अमेजिंग इतिहास हैं और इसकी जड़ें केवल भारत तक नहीं हैं, इसकी जड़ें विश्व में फैली हैं। अगर आप थाईलैंड जाओ तो थाईलैंड में भी एक रामायण का वर्जन है। वो बोलते हैं उसको रामकियन, ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप उनसे पूछो कि क्या स्टोरी है भाई आपकी इस रामकियन हिस्ट्री की, तो वो बोलते हैं कि इसमें एक राजा था जिनका नाम था राम, उनकी वाइफ थी जिनका नाम था चिंता, सीता नहीं, वहाँ पे वो उनको चिंता, और उन्होंने 10 सिर वाले एक रावण का वध किया था, जिन्होंने चिंता को उठा लिया था, किडनैप किया था। अब ये थाईलैंड की बात बता रहा हूँ आपको, ये भारत की बात नहीं है। आप थाईलैंड की कैपिटल भी पढ़ोगे तो एक ज़माने में उसकी हिस्ट्री में आता है, उसकी कैपिटल का नाम ही अयोध्या। और जो उनके राजा हुए, अगर उनके राजाओं की भी चर्चा की जाए तो उनके राजा भी ऐसे होते थे, राम 1, राम 2, राम 3, राम 4, 9 तक राजा राम के नाम से पुकारे जाते थे। आपने थाई बॉक्सिंग भी सुना होगा, थाई बॉक्सिंग। अब थाई बॉक्सिंग इज अ थाई कॉन्सेप्ट, लेकिन आप उसमें भी पाओगे, उस थाई बॉक्सिंग में देयर इज हनुमान किक, अंगद फ्लाइट। जब उड़ते हैं तो उन्हें बोलते हैं अंगद फ्लाइट। उन्हें स्वयं नहीं पता ये नाम कहां से आए, लेकिन ये उनके परंपरा में चले आ रहे हैं। दे हैव नो आइडिया वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। इथोपिया, अगर आप इथोपिया चले जाओ, एक बार एक संत इथोपिया गए और वहाँ रामायण की एक कॉपी ले गए और उनको रामायण का एक ग्रंथ दिया वहाँ के राजा को। तो जब उनके राजा ने वो कॉपी पढ़ी तो उन्होंने पूछा कि इसकी क्या स्टोरी है। तो वो संत बताने लगा, भाई ये एक रामायण है, इसमें एक कथा है राम की, जिनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, तो पत्नी के साथ वनवास पे जा रहे थे,
तो वहाँ पर एक राक्षस जिसके 10 मुंह थे, उसने इनको किडनैप किया। तो इसने तुरंत रोक दिया, बोले रुको 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 रुको, ये कहानी वहाँ की है? तो बोले हाँ ये हमारे भारत की है। बोले नहीं, ये कहानी तो यहाँ की भी है। बोले यहाँ की है, आपको कैसे पता है ये कहानी? बोले वाई डोंट आई नो, आई एम आफ्टर ऑल आई एम अ कुशाइट। अब वो संत ने देखा कि कुशाइट क्या है, भारत आके थोड़ी रिसर्च करी। तो जब शास्त्र खंगाले तो पता लगा जब भगवान राम इस संसार से जा रहे थे तो उन्होंने पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड किया था, एक भाग लव के लिए और एक भाग कुश के लिए। तो जो कुश के लिए आया था उन पूरी डायनेस्टी को कुशाइट कहा जाता है। उनको ये भी नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि कुशाइट, वी आर कुशाइट, और ये हमारी स्टोरी है ये तो हमारे पूर्वजों की स्टोरी है। ये मैं आपको इथोपिया की बात बता रहा हूँ। कौन कहता है ये ज्ञान सिर्फ भारत में सीमित है? कौन कहता है? इसकी तारें जगह जगह गई हैं, खंगाली नहीं गई हैं। और जहाँ मॉडर्न हिस्टोरियंस ने टेक ओवर किया है, उन्होंने इसको माइथोलॉजी कह के डिरोड कर दिया है। आप देखिए, जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तो ताड़का का पुत्र है मारीच। मारीच आ गया था लड़ने के लिए, भगवान ने एक ही तीर से 100 मील दूर उसको उठा के फेंक दिया था, एक ही तीर से। और वो जहाँ गिरा था प्रैक्टिकली उस स्थान का नाम पड़ा मॉरिशियस, बाद में वो मॉरिशियस हो गया। वो एक्चुअली में मारीच की जगह है, मॉरिशियस। आज भी मॉरिशियस वन ऑफ द बड़ा प्रोमिनेंट भक्ति में प्रगाढ़ देश है, जगह जगह राम कथा आज भी होती है। ऐसा कोई दिन नहीं कि वहाँ राम कथा ना हो रही हो। हाँ, इट इज स्टिल सो पोटेंट हेयर। इवन इन सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका आप चले जाओ, वहाँ मयन कल्चर बड़ा प्रोमिनेंट है। वो मायासुर रावण का फादर इन लॉ है ना, फादर ससुर जी हैं, उनकी परंपरा चली आ रही है आज भी वहाँ पर। आप बर्मा चले जाइए, कंबोडिया चले जाइए, मलेशिया में तो एयरपोर्ट भी टर्मिनल 1, राम 2, वहाँ भी टर्मिनल्स ऐसे हैं। बाली चले जाइए, बाली में तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्क है, आप उसी में आपको इतना बड़ा स्टैचू दिखता है कुंभकर्ण का, कुछ मंकीज को खाता हुआ, कुछ को पकड़ा हुआ, कुछ को जकड़ा हुआ। अमेजिंग। किसने कहा ये भारत किया है? भारतवर्ष पूरा विश्व था। रामायण हैज सो मच ऑफ सिग्निफिकेंस इन एवरीबडीज लाइफ, everybody's life. It is not a small, and it is not a sectarian granth. It is not dealing with one part of the society. It has impact practically everywhere. हर व्यक्ति इससे सीख सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो रामायण में जो आज का हमारा प्रमुख, जो मैंने आज विषय सोचा आप सबके साथ चर्चा करने का, वो मेन है अयोध्या, किष्किंधा और लंका। आज हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इन पे थोड़ा ज्ञान डालें कि ये 3 नगरियां हैं क्या और ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो पहले तो हमें इतना समझ में आ गया कि जो रामायण है ये केवल भारत नहीं है, पूरे विश्व की है। आप सब मेरे साथ हो? इट इज फॉर द इंटायर creation. It is not only for a small sect of Indians, it is for everybody. It can change everybody's life. It has the potency to touch heart of any individual. Any individual. अब ये 3 नगरियाँ बड़ी फेमस हैं। अयोध्या को हम देखेंगे, दृष्टिकोण देखेंगे इसका संस्कृति के हिसाब से। अयोध्या संस्कृति की नगरी है। यहाँ का आचरण बड़ा ही हमारी संस्कृति बताता है। मैं आपको लिए चलता हूँ, जब दशरथ के यहाँ विश्वामित्र आए थे। अब विश्वामित्र आए, और विश्वामित्र तो आप जानते हो ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, ब्रह्म ऋषि हैं। सो मच ऑफ पोटेंसी ही हैज़। ऐसा कौन सा अस्त्र, ऐसा कौन सा शस्त्र, ऐसा कौन सा शास्त्र, ऐसा कौन सा ज्ञान जो इनको ना हो। अब ये पहुंच गए दशरथ के पास, और दशरथ जी से आके अनुनय विनय करते हैं कि हे दशरथ, मुझे आपका पुत्र चाहिए। अब एक्चुअली में दशरथ
मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। दशरथ जी ने कहा, मेरा पुत्र किस लिए? उस वक्त भगवान राम बहुत छोटे थे, 12 वर्ष के थे, ओनली 12 ईयर्स। अब आपके 12 साल के बच्चे को आके कोई ऋषि महात्मा कहे कि अपना बच्चा दे दो, आप बोलो क्या करना है? बोले राक्षसों से लड़ने जाना है। आप क्या कहोगे? खैर, मैं आपको इतने भयंकर प्रश्न पे छोड़े नहीं जाऊंगा। तो वहां उन्होंने कहा, अपना बेटा दे दीजिए, हमें थोड़े राक्षसों का वध करना है, राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं। दशरथ महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। पता है कि अगर ना किया तो विश्वामित्र का क्रोध कैसा है, और इनका क्रोध कैसा है ये अपने गुरु वशिष्ठ से पूछ भी सकते हैं। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र के बीच में पुराने ज़माने में बहुत, देयर वाज अ टेरिबल टाइम दे बोथ हैड फेस्ड। अगर मैं उस पे चला गया तो पूरी क्लास उन दोनों के युद्ध पे ही चली जाएगी, तो इसलिए मैं वो नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अभी दोनों मित्र हैं। वशिष्ठ मुनि जानते हैं कि विश्वामित्र मुनि कुछ कह रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनका गुस्सा झेला नहीं जाएगा दशरथ से। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि आप राम को क्यों ले जाना चाहते हो? राम तो राजीव लोचन है, रामो राजीव लोचनम। राजीव लोचन, राजीव का अर्थ होता है कमल। अब दशरथ महाराज बोलते हैं कि मेरा बेटा जो राम है वो कमल लोचन है। कमल लोचन मतलब कमल जैसी आंख है। कमल जैसी आंख का मतलब है कमल का पुष्प जैसे ही सूर्य ढलता है ये पुष्प बंद हो जाता है। तो मेरा राम तो शाम ढलते ही इसकी भी आंख बंद हो जाती है, ये भी सो जाता है, थकता है। आप इस छोटे से बालक को क्यों ले जाते हो? क्या आपको मैं नहीं दिख रहा? मेरा नाम दशरथ है। दशरथ शब्द का अर्थ है जो 10 दिशाओं में जा सके, 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सके। दशरथ महाराज इतने पावरफुल राजा थे कि जब इंद्र तक को कहीं जरूरत पड़ती थी युद्ध में राक्षसों से लड़ने की, तो इंद्र भी दशरथ महाराज को पुकारा करते थे, वुड यू बी एबल टू फाइट ऑन आवर साइड? एंड दशरथ महाराज यूज्ड टू से, व्हाई नॉट, आई लव टू हेल्प डिवोटीज। दशरथ महाराज जाया करते थे। 60,000 साल हो गए थे दशरथ महाराज को अयोध्या को राज्य करते हुए। एक भी दिन, एक भी बार अयोध्या को जीता नहीं गया था। इसका नाम ही अयोध्या है, अयुध्या, जिसके साथ युद्ध ही ना किया जा सके। दशरथ महाराज को हराना असंभव का भी असंभव है। एक बार इंद्र हार सकता है लेकिन दशरथ महाराज नहीं हार सकते। तो दशरथ महाराज ने कहा, हे विश्वामित्र मुनि, आप मेरे अतिथि हैं, आप मेरे गुरुवर के मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं, आप मुझे ले जाइए। ऐसा कौन सा राक्षस है जिसका सामना मैं नहीं कर सकता? आप मेरे राम को मत लीजिए। विश्वामित्र ने कहा, एक ऋषि को मना करना आसान बात है क्या दशरथ? और तुमने तो कहा, जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, जब कोई ऋषि मुनि किसी किंगडम में आया करते थे तो राजा सबसे पहले अपना पूरा राज्य उस ऋषि को सौंप दिया करते थे। फर्स्ट एक्टिविटी, अपना पूरा राज्य उस ऋषि के चरणों में रख दिया करते थे। और ऋषि भी इतने सेल्फ सेटिस्फाइड होते थे कि वो वही राज्य वापस दान में राजा को ही दे दिया करते थे। दिस वॉज अ नॉर्म, दिस वॉज अ सोशल एटिकेट। तो जब विश्वामित्र आए तो दशरथ महाराज ने अपना मुकुट उतार के रख दिया चरणों में कि हम तो सब आपके हैं। तो विश्वामित्र बोले, जब सब मेरे हैं तो मुझे तो राम चाहिए। दशरथ महाराज घबरा गए, परेशान हो गए। लेकिन इस परेशानी में वो मुड़े अपने गुरु की ओर, वशिष्ठ मुनि की ओर। यह है संस्कृति। व्यक्ति जब जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जो आपातकालीन ही नहीं, जिनका उसको स्वयं पता नहीं कैसे डील किया जाए, उस वक्त व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये संस्कृति है। अयोध्या संस्कृति की नगरी है।
दशरथ महाराज ने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि मुझे क्या करना चाहिए, ये तो मेरे बस की बाहर की बात है, मेरे प्राण मांग रहे हैं विश्वामित्र मुनि। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन, विश्वामित्र आए हैं, ये चाहें तो स्वयं समस्त राक्षसों का वध कर सकते हैं। ये कोई साधारण मुनि नहीं है, ये राम को लेने आए हैं तो इसके पीछे कोई दिव्य योजना है। ये इसके बदले में राम को वो दे जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए राजन, ना करो, जाने दो राम को। अब दशरथ महाराज तो विशिष्ट मुनि की प्रति क्यों पूछने गए थे कि किसी प्रकार से रोको। मन में तो यही भाव होगा कि आप विशिष्ट मुनि रोक लो, मेरा बेटा ना चला जाए। लेकिन अगर गुरु ने कह दिया कि जाए, तो दशरथ महाराज ने दूसरा क्षण दिमाग नहीं लगाया। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते कौरिया इक्या, और ना करी हो मने आशा। सो जैसे गुरुदेव ने कह दिया, तुरंत के तुरंत तैयार हो गए। हालांकि बहुत दुख हुआ। संस्कृति, राम विश्वामित्र के साथ चल दिए। अब विश्वामित्र के साथ चल दिए अपने अस्त्र शस्त्र लेके। अब राम और लक्ष्मण, ये तो दोनों जैसे एक व्यक्ति और एक उसकी परछाई। इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल क्या, असंभव ही है। आप क्या किसी व्यक्ति को और उसकी परछाई को अलग कर सकते हो? कभी नहीं। परछाई की एक और खूबी होती है। परछाई आप देखोगे तो कहां से बनती है? चरणों से। व्यक्ति की परछाई उसके चरण से बनेगी। तो लक्ष्मण तो भगवान राम की परछाई हैं, एकदम चरण के साथ ही रहते हैं। और परछाई की एक और खासियत होती है, परछाई का आकार छोटा और बड़ा होता रहता है परिस्थिति के अनुसार। सेवक भी वैसा ही है। सेवक चरणों में जुड़ा रहता है और मालिक की आज्ञा के अनुसार अपना आकार बड़ा या छोटा करना उसको आता है। यही सेवक है। जब सीता मैया को मिलने हनुमान जी गए थे, तो हनुमान जी बहुत छोटे थे, क्योंकि छुप के जाना था। अशोक वाटिका पहुंच गए। अब अशोक वाटिका पहुंच के मैया के सामने खड़े हो गए। मैया को अंगूठी दे ही दी थी, तो बोले, मैया आप मेरे साथ ही चलो। तो मैया पूछती है, हनुमान बेटा पहले मुझे बताओ, इतने छोटे से हो, मुझे लेके कैसे जाओगे? तुम तो बड़े पिद्दू हो। हनुमान जी ने कहा, ओह सॉरी मैया। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार बड़ा कर लिया। अब इतना बड़ा कर लिया कि दिखाई नहीं दे रहे इतने बड़े। तो सीता मैया पूछती है, हनुमान बेटा पहले ये बताओ तुम्हारा असली आकार क्या है? तुम छोटे हो या तुम बड़े हो? तो हनुमान जी कहते हैं, मैया मैं तो सेवक हूं, ना मैं छोटा हूं ना मैं बड़ा हूं। राम की सेवा के लिए जो आकार लेना पड़े वही मेरा आकार है, ना तो छोटा ना बड़ा। सेवक जो गुरु चाहे, जितना आकार लेने को चाहे, वो उतना आकार लेने का उसका धर्म है। तो मेरा तो असली कुछ नहीं है। जो राम कहते हैं ये कर जाओ तो वो करता हूँ, राम कहते हैं ऐसा कर लो तो वैसा कर लेता हूँ। ये है शिष्य। एक भक्त का यही धर्म है, वह हर वक्त ईगो में ना रहे, अहंकार में ना रहे। गुरु या स्वामी के मूड के अकॉर्डिंग उसका मूड, उसका आकार उसको बदलना आना चाहिए। एक तरफ रामायण के हीरो हैं। अगर आप रामायण की बात करते हो तो या तो स्मरण में राम आएंगे, हनुमान के बिना भी रामायण अधूरी सी लगती है। वो हनुमान जी जो हीरो हैं रामायण के, महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में क्या सेवा कर रहे हैं? महाभारत में भगवान से पूछते हैं, भगवान मेरी क्या सेवा होगी? तो भगवान बोलते हैं, देखो भाई महाभारत का हीरो तो अर्जुन है, तो तुम एक काम करो, भीम के रथ पे
भीम के रथ के झंडे पे वहीं जाके लग जाओ, जब भीम चिंगाड़े तुम भी चिंगाड़ देना। बोले बस, बोले हाँ यही सेवा है इस बार तुम्हारी। अब हनुमान जी चाहें तो ये 11 अक्षौणी सेना ये एक बारी में मुंह खोलें और खा जाएं। बोले हो गया, चलो जी महाभारत खत्म, 18 दिन की जरूरत ही नहीं है, एक ही दिन में पूरी महाभारत खत्म हो सकती है। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं इस बार तुम झंडे पर रहो। ये है दास, एक प्रोजेक्ट में हीरो और दूसरे प्रोजेक्ट में इतना सा, लेकिन तब भी श्रद्धा कम नहीं होती, तब भी प्रेम कम नहीं होता, तब भी भक्ति कम नहीं होती। एक भक्त वही है, किसी प्रोजेक्ट में गुरु आगे ले जाए तो वो आगे बढ़कर कार्य करे, किसी प्रोजेक्ट में गुरु कहें पीछे रहो। इतनी ही सेवा है, उतनी ही सेवा करे, जान लगाए, जो गुरु की प्रसन्नता, जो भगवान की प्रसन्नता उसी में रहे। ये हनुमान जी हमें सिखाते हैं। तो एक शिष्य का क्या धर्म है? उसका धर्म यही है। तो लक्ष्मण बिल्कुल परछाई की तरह विश्वामित्र और राम के साथ साथ हो लिए। अब रास्ते में एक नदी आई तो भगवान राम विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, ये नदी आई है, इसको कहाँ से पार किया जाए? क्या यहाँ से पार कर लें? यहाँ थोड़ी गहरी कम लग रही है, या वहाँ मुझे एक नाव वाला भी दिख रहा है, वहाँ से पार करें, आदेश दीजिए। विश्वामित्र मुनि मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राम, ना तो यहाँ से जहाँ से ये थोड़ी गहरी कम दिख रही है, और ना ही वहाँ से जहाँ नाव वाला खड़ा है। हम इस नदी को वहाँ से पार करेंगे जहाँ से हमारे गुरुजन किया करते थे। तो विश्वामित्र मुनि उन्हें वहाँ लेके गए जहाँ से इनके गुरुजन पार करते हैं। अनदर लर्निंग, महाजनो ये न सगतान पंथा। जो मार्ग आचार्यगण दिखा के गए हैं, अगर व्यक्ति उस मार्ग को छोड़कर अपना ही कोई मार्ग बनाना चाहता है तो वो ऑथराइज्ड नहीं है, उसमें प्राण नहीं है, उसमें जान नहीं है, उसमें कृपा नहीं है। भगवान राम राम होते हुए भी उसी मार्ग से गए जिस मार्ग से गुरुजन गए थे। फैंटास्टिक लर्निंग। वी शुड नेवर ट्राई टू मेक अ न्यू पाथ। जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमें ये सुंदर पाथ दिया है, सुंदर परंपरा दी है, इसी के अनुगत्य हो हमारे को प्रोसेस में आना चाहिए, ताकि वो ही भगवान राम वांटेड टू टीच अस संस्कृति। ये संस्कार हैं। हमें कोई सीनियर बोले कि ऐसे नहीं प्रभु जी, ऐसे करना चाहिए, हमें प्रभु जी क्यों? नहीं प्रभु जी पहले बताओ क्यों? नहीं बताओ नहीं बताओ ना। नॉट लाइक दिस। भगवान गीता में बोलते हैं परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न पूछने चाहिए, शिष्य का अधिकार है। अधिकार क्या, शिष्य का कर्म भी यही है, लेकिन उसके प्रश्न बड़े विनम्रता पूर्वक होने चाहिए। उसके प्रश्नों में बहुत विनम्रता होनी चाहिए। परीक्षा लेने की बात नहीं करनी चाहिए, कुछ ज्ञान लेने की, ऑब्जेक्टिव जानने की बात होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न कभी नहीं चूकते। लेकिन वो प्रश्न जो अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, वो प्रश्न जो मानते नहीं हैं, प्रतिकार युक्त लगते हैं, भगवान उसको निषेध कहते हैं। भगवान कहते हैं प्रश्नों से सेवा की जा सकती है, लेकिन विनम्रता से। है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो गुरु की शरण में जाके बड़े हम्बल वे में प्रश्न पूछने चाहिए। तो भगवान राम जो कि स्वयं राम हैं, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी हैं, वे राम भी विश्वामित्र के अनुगत्य हैं, और जहां से वो लेके जा रहे हैं वहीं जा रहे हैं। अब विश्वामित्र मुनि के तो ऑब्जेक्टिव केवल राक्षस वध नहीं था। राक्षस वध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विश्वामित्र मुनि रामायण में बस ये अंतिम दौर तक आएंगे जब सीता स्वयंवर होता है। उसके बाद विश्वामित्र मुनि रामायण में मुड़कर है, उनका जिक्र नहीं आता। ही फेड्स अवे। अर्थ ये है, विश्वामित्र मुनि का मेन ऑब्जेक्टिव था भगवान राम को
सीता से मिलवाना। यूं तो गुरु का कार्य होता है शिष्य को या एक भक्त को भगवान से मिलाना। यूं तो गुरु का यही कार्य है कि एक भटके हुए जीव को भगवान के साथ संबंध स्थापित कर देना, पर गुरु ब्रिज की तरह काम करता है। वो भगवान को भी भक्त के पास तक ले आता है। दैट इज द पोटेंसी ऑफ गुरु। सो विश्वामित्र मुनि सीता स्वयंवर तक ले गए। अब सीता स्वयंवर तो मेजरली नहीं था, वो बात यूं थी कि जब सीता मैया बड़ी छोटी थी तो एक शिव चाप यानी कि एक शिव धनुष था। अब सीता मैया तकरीबन 5 वर्ष की थी, तो खेल खेल में फूल तोड़ने थे, तो कोई फूल तोड़ने के लिए चीज़ नहीं मिल रही थी, तो ये जो धनुष है, इस धनुष को बाएं हाथ से उठाकर और फूल तोड़ रही थी। मैं थोड़ा इस धनुष के बारे में बता दूं आपको, ज़रा गंभीरता से सुनना, बेहोश नहीं होना, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना। ये धनुष वास्तव में क्या है? ये धनुष को 700 लोग, अच्छा सॉरी लोग नहीं, 700 मुष्टंडे, ठीक है, ओहो मुष्टंडे नहीं, 700 बॉडी बिल्डर, अभी समझ में आएगा। 700 बॉडी बिल्डर दशरथ के राज्य के इस धनुष को खींचते थे रथ से, जो उनका पहिया जिस पे 2 लगे थे, तो 1 मीटर इसको खिसकाने के लिए 4 घंटे लगते थे, और 4 घंटे के बाद 4 घंटे रेस्ट करना होता था। समझिए, इतना रथ खिसकाने के बाद ये 700 लोग रेस्ट किया करते थे। सोच सकते हो कितना भारी धनुष होगा। उस धनुष को जानकी मैया ने 5 वर्ष की आयु में ऐसे ही उठा के फूल तोड़ रही थी। ये जब लोगों ने देखा, कई लोग तो बेहोश हो गए। वहां 2-4 दासियां भाग के गई जनक महाराज के महल में। जनक महाराज तब अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठ के किसी केस पे चर्चा कर रहे थे। तो दासी ने आज्ञा मांगी, राजा ने कहा बोलो। तो जब उसने घटना सुनाई कि ऐसे ऐसे फूल तोड़ रही हैं सीता मैया उस शिव चाप से, शिव धनुष से, तो जितने लोग सुन रहे थे पहले तो वही बेहोश हो गए। बोले ये पॉसिबल ही नहीं है। जनक महाराज बोले मैं जाके देखता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। तो पता लगा धनुष कई मीटर दूर। उसके बाद सीता को पूछा, सीते क्या तुमने धनुष उठाया? अब सीता मैया डर गई कि पिता से डांट पड़ जाएगी। बोले मैंने वहीं रख दिया जहां उठाया पापा, मैंने वहीं रख दिया। जैसे कभी कोई बच्चों को पूछ लो कि बेटा तूने ये चीज़ देखी है, वो बोलते हाँ मैंने देखी थी पर मैंने वहीं रख दी थी, मैंने उसका कुछ नहीं किया। तो सीता मैया घबरा गई। तो बताई मैंने तो बस उठा के थोड़े फूल तोड़े, पिताजी सॉरी अब नहीं करूँगी। तो पिताजी घबरा गए। पिताजी ने कहा ये लड़की इतना बल है कि वो धनुष जिसको 700 लोग कुछ दूर ले जाके 4-5 घंटे रेस्ट करते हैं, उसको बाएं हाथ से इसने उठा लिया। इसी दिन जनक महाराज ने सोचा कि अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा या जो इस धनुष को उठा तो सके, क्योंकि इतनी पावरफुल लड़की, सोचो अगर उसका विवाह किसी से भी हो गया तो आलिंगन भी करेगी तो चूरा बना देगी। तो कोई ऐसा पावरफुल व्यक्ति तो चाहिए जो उनके साथ संबंध हो सके। तो बात ठन गई थी कि जो भी इस शिवचाप को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उस व्यक्ति के साथ इसका सीता का विवाह कर दिया जाएगा। तो विश्वामित्र मुनि ने एक दिन राम लक्ष्मण को कहा कि हे राम, राक्षसवध तो हो गए, हमारा यज्ञ भी हो गया, बहुत अच्छा किया बच्चों तुमने, बहुत बढ़िया रहा, पर मैं कल मिथिला जा रहा हूं, वहां एक बहुत सुंदर शिव धनुष है, उसके दर्शन करने। क्या तुम दोनों चाहोगे उस धनुष का दर्शन करना?
तो आप अगर किसी क्रिकेटर को कहो कि सचिन तेंदुलकर का बैट है पास वाले घर में, आप देखना चाहोगे? तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ हाँ, अरे भाई मैं तो देखूंगा, मेरा बैट देखना चाहता हूँ सचिन तेंदुलकर का। तो जो धनुष प्रेमी, अस्त्र प्रेमी, शस्त्र प्रेमी क्षत्रिय लोग हैं, उनको भी है इंस्पिरेशन आई कि नहीं, मैं भी देखना चाहता हूँ शिवजी का धनुष कैसा होता है। तो भगवान राम ने तुरंत हामी भर दी। तब विश्वामित्र ने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा विवाह होगा जाके बस धनुष देखने की बात हुई थी। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों तैयार हो गए, दोनों भाइयों को लेकर ये पहुंच गए मिथिला। अब मिथिला में जाके बैठे हैं। खैर मैं ये पूरा संवाद नहीं कहूँगा, नहीं तो 4-5 दिन केवल इसी संवाद के लिए चाहिए। जनरली हम सीताराम का विवाह अवसर ही 7 दिन की कथा होती है, अब इतने दिन में तो पता नहीं। हाँ, तो हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे तो अभी किष्किंधा भी जाना है, मुझे अभी लंका भी जाना है। तो अभी संस्कृति की बात हो रही है। तो वो धनुष पड़ा है, रखा गया है, पूजनीय, आदरणीय, अर्चनीय सब कुछ है। तो विश्वामित्र मुनि जनक के महल में पहुंचते हैं, बहुत देर संवाद होता है, बहुत सुंदर वार्ता है। तो बाद में विश्वामित्र बोलते हैं भगवान राम को कि हे राम, जरा धनुष देखाओ। अब सिर्फ देखाओ ऐसा कहा। भगवान राम वहां गए। गुरु आज्ञा पालन करना धर्म है। भगवान राम वहां गए और देखा और धनुष को उठा लिया। हमारे आचार्यगण दिखते हैं कि कहा तो देखने को था, फिर राम ने उठाया क्यों? जिस प्रकार रूप गोस्वामी को कहा जाता है ना, श्री चैतन्य मनोभीष्टम मन के भीष्ट को, अभीष्ट को जानते हैं कि मन में इच्छा क्या है। ऐसा ही एक अच्छा डिसाइपल गुरु के हृदय को जानता है, उसका समन्वय हो जाता है। वो जानते थे कि गुरुदेव चाहते हैं कि मैं ये उठाऊं। भगवान राम ने तुरंत उठा लिया। अब रघुवर ने उठाया। अब उठाया तो सोचा डोरी लटक रही है, तो सोचा डोरी भी बांध दूं। अब डोरी बांधी, डोरी क्या बांधी, वो तो डोरी बांधने लगे तो टूट ही गया शिव धनुष। अब शिव धनुष टूट गया, इधर से धनुष टूटा, उधर से सीता मैया वरमाला लेके आ गई। तो भगवान राम विश्वामित्र को देख रहे हैं कि ये तो नहीं बताया था धनुष की बात हुई थी, ये कन्या कहां से आ रही है। हालांकि भगवान राम का एक दिन पहले सीता मैया से रूबरू हो चुका था, तो लक्ष्मी को प्राप्त कर तो उन्हें पता ही था कि ये लक्ष्मी है, ये यही हैं जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन भगवान राम फिर विश्वामित्र के पास जाते हैं। अभी माला गले में डाली नहीं, और विश्वामित्र को जाके कहते हैं, हे गुरुवर, क्या आपकी इसमें आज्ञा है? क्या इसमें मेरे गुरु विशिष्ट और मेरे पिताजी की आज्ञा है? ये बात सुनकर विश्वामित्र मुनि बड़े गर्वित हो जाते हैं। बोलते हैं, क्या भक्त, क्या स्वभाव है। व्यक्ति को इंद्र तृप्ति के या लुभाने वाले कई प्रलोभन मिल सकते हैं, लेकिन उन प्रलोभनों के बीच में भी वो अपने कैरेक्टर को खराब नहीं होने देता, वो अपनी दृढ़ता को नहीं छोड़ता, वो अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ता, वो आज्ञा पालन करने की स्पिरिट को नहीं छोड़ता। क्या कैरेक्टर है। विश्वामित्र मुनि प्रफुल्लित हो जाते हैं और बोलते हैं, हे राम, अयोध्या में संवाद भेजते हैं, स्वयंवर होगा। खैर स्वयंवर होता है, परशुराम भी आते हैं, सब हो जाता है। क्योंकि मैं संस्कृति की बात कर रहा हूं, तो मैं भगवान राम की संस्कृति या अयोध्या की संस्कृति की बात बता रहा हूं आपको। अब विवाह के भी 12 वर्ष हो जाते हैं। इस वक्त सीता मैया की उम्र 6 साल थी और भगवान राम की 12। जब ये विवाह हुआ, उसके भी 12 वर्ष तक ये लोग अयोध्या में बड़े प्रेम से रहते हैं। इसी बीच भरत और शत्रुघ्न को कैकई प्रदेश जाना पड़ता है। कैकई प्रदेश अभी अगर आजकल के जीपीएस सिग्नल लगाया जाए तो तकरीबन रशिया,
उसको रशिया कहा जाता है। तो जो कैकई थी, शी वॉज अ रशियन डिवोटी है। सो वो रशिया प्रदेश, कैकई यानी जहाँ पर बहुत से मोर रहा करते हैं, तो उनकी आवाज़ गूंजती है जहाँ, तो कैकई प्रदेश। तो इन लोगों को जाना पड़ा था कैकई प्रदेश, क्योंकि नाना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, संदेश आया था, तो ये चले गए थे। तो दशरथ एक दिन अपने महल में थे, राजमुकुट पहनने वाले थे, चेहरा अपना दर्पण में देख के यहाँ एक बाल सफेद होता दिखता है, एक बाल। जैसे ही बाल थोड़ा सफेद दिखता है, ये मुकुट उतार देते हैं, सारथी को बोलते हैं रथ लगाओ। रथ में बैठ के तुरंत पहुंचते हैं विशिष्ट मुनि के आश्रम, अपने गुरु के आश्रम। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, दशरथ तुम, अरे आप क्यों आए? थोड़ी देर में मैं ही ऑफिस आने वाला हूं, राजभवन थोड़ी देर में मैं ही आने वाला था, आप कैसे आ गए इतनी जल्दी? बोले, गुरुदेव बात बहुत गंभीर है। जब मरीज थोड़ा सा बीमार होता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। पर ज़्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर के घर भी चला जाता है। डॉक्टर साहब अभी ऑफिस का टाइम नहीं है, बहुत बीमारी हो गई है। बीमारी क्या है? एक बाल सफ़ेद हुआ है। दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि के चरणों में बोलते हैं, गुरुदेव बहुत भयंकर समस्या है। समस्या ये है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, 60,000 साल हो गए अयोध्या पे राज्य करते हुए, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, उसका प्रतीक ये है एक बाल। हे गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव पूछते हैं, आपके हृदय में क्या इच्छा है? दशरथ महाराज बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे लगता है अब राजभार राम को सौंप देना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है? विश्वामित्र मुनि बहुत खुश हो जाते हैं। आप देखिए, डिसीजन मेकिंग में it is not only you who is taking a decision, it is not only Dasharath Maharaj who is taking a decision. He has seen something and now he is going to his guru. रामायण बहुत सुंदर है। रामायण जीवन जीने का एकदम सटीक तरीका देती है। आप कभी नहीं हार सकते, कभी नहीं। हाँ, जब जब हम इस मार्ग से च्युत होंगे, जब जब हम इस सिद्धांत से च्युत होंगे, जब जब हम डिविएट होंगे, तब तब परेशानी में आएंगे। दशरथ महाराज का एक बाल सफेद हुआ, हमारे तो बाल सफेद हो गए, पूरे झड़ने लगे हैं, गायब भी हो गए कई। बट वी आर नॉट फाइंडिंग दिस डायरेक्शन। But Dasharath Maharaj straight away went to his guru, paid obeisances and poured his heart out. गुरु फैशन स्टेटमेंट नहीं है। गुरु केवल संसार को या भक्तों की सभा में बताने के लिए कि मैं शिष्य हूं इनका, मैं शिष्य हूं इनका, इसके लिए ही नहीं है। गुरु तो वो हैं जिनकी एंजाइटी हमें लेनी है। गुरु तो वो हैं जिनकी सेवा में जीवन रत एक एक क्षण लगाने के लिए उत्सुकता आ जाए, इतना प्रेम हो जिनसे। स्वयं डिसीजन नहीं। चैतन्य चरितामृत कहती है, प्रगाढ़ प्रेमेर एहि स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादि ना करी विचार। दशरथ महाराज अपने गुरु से इतना स्नेह करते हैं, जो कह दिया वो कह दिया। और कई बार लोग ऐसा डरते भी हैं कि अगर गुरुदेव ने कह दिया और हमने नहीं मानी तो अवज्ञा हो जाएगी, इसलिए जाएं ना। हमें पता है वो क्या कहेंगे, इसलिए हम जाएंगे नहीं उनके पास, नहीं तो अवज्ञा हो जाएगी। रॉन्ग कॉन्सेप्ट। संस्कृति, भगवान राम के जो ये संस्कार हैं अयोध्या के, दशरथ महाराज डेमोन्स्ट्रेटेड दो संस्कार्स। जब माता पिता में संस्कार होते हैं ना, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो संस्कार बच्चों में भी जाएं। जब पिता को हमेशा गुरु के अधीन देखा है, तो बच्चों में ये संस्कार क्यों नहीं आएंगे?
जब दशरथ हर छोटी बात को अपने गुरु से पूछते हैं, हालांकि 8 मंत्री थे दशरथ महाराज के और सारे बहुत सोफेस्टिकेटेड मंत्री, अपने आप में हर मंत्री एक सब्जेक्ट पे निपुण, इन सब से राय लेते थे, पर डिसीजन मेकिंग इज विद गुरुदेव। सो दशरथ महाराज ने कहा मैं तो ये चाहता हूं गुरुदेव, आगे आप जाने आप क्या चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक बात है, वेरी गुड। तो गुरुदेव कोई अच्छा मुहूर्त बताइए जिसमें हम कर दें। गुरुदेव ने कहा कल का ही मुहूर्त है, डू इट टुमारो, कल से ही। तो दशरथ महाराज ने कहा हे गुरुदेव इतनी जल्दी कार्य कैसे होगा। बोले हो जाएगा, जब इच्छा आई है तो कार्य भी हो जाएगा, जल्दी से करते हैं, मैं भी कुछ भार संभालता हूं। राम को बुलाया गया। अब भगवान राम उस वक्त तैयार हो रहे थे और भगवान राम को बता के बोला गया कि हे बेटा, हे राम, कल से गुरुजनों ने ये आज्ञा दी है, हम सब की सर्वसम्मति से आपको हम कल राजा घोषित करेंगे। हालांकि कथा बहुत लंबी है, क्योंकि पहले दशरथ महाराज अपनी प्रजा के पास जाते हैं, अपने मंत्रियों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि राम कैसा होगा राजा। तो प्रजा में से वो मंत्रियों में से बोलता है बहुत अच्छा होगा, बेस्ट है, तालियां बजती हैं। तो दशरथ महाराज एक टाइम के लिए घबरा जाते हैं, बोले अरे इनमें से एक भी नहीं कह रहा कि नहीं आप ही कंटिन्यू कर लो आप भी बहुत अच्छे हो, अभी थोड़ा समय और रुक जाओ। हाँ? लेकिन उनके मंत्री इतनी सुंदर बात करते हैं, जीत लेते हैं हृदय अपने राजा का भी और राम का भी। तो ये संवाद फिर किसी दिन आज्ञा होगी तो फिर किसी दिन कहूँगा। अभी दशरथ महाराज राम को बुला के बोलते हैं बेटा कल तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। भगवान राम कहते हैं जो आज्ञा पिताजी। इसी बीच में आपको पता है ये संवाद मिलता है मंथरा को। मंथरा कैकई को फंसा लेती है। वो कैकई जो भगवान राम से इतना स्नेह करती थी, आप सोच नहीं सकते। जब कैकई भगवान राम आया करते थे महल में वापस, कैकई अपने हाथ से प्रसाद बनाती थी राम के लिए। भरत को दासियों के हाथ का खिलाती थी। बोले नहीं नहीं, राम मेरे हाथ का ही खाएगा, राम को किसी और के हाथ का पसंद नहीं है, राम को मैं खिलाऊंगी। साथ में बिठा के गोद में अपने हाथों से राम को खीर खिलाया करती थी। भरत को कहती थी तुम देख लियो अपना कैसे खाएगा तू। वो कैकई जो राम को इतना स्नेह करती है, एक मंथरा। अब मंथरा कहती है कि कैकई तुम्हें पता है राम राजा बनेंगे। तो कैकई इतनी खुश हो जाती है, अपने गले का हार निकाल के मंथरा को देती है, राम राजा बनने वाले हैं, क्या बात, कितनी अच्छी खबर है, नाचो, दिए जलाओ, सब कुछ करो, राम राजा बनने वाले हैं। मंथरा कहती है मूर्ख, तू क्या कर रही है। बोल रही है वही कर रही हूं जो करना है, मेरा राम राजा बन रहा है। मंथरा फिर कहती है राम राजा नहीं बन रहा, भरत कभी राजा नहीं बन सकता फिर, अगर राम राजा बन गया तो। कैकई कहती है तो ये तो और भी अच्छी बात है, भरत तो राम का दास है, तो दास को दासत्व मिल गया, राजा को राज्य मिल गया, इससे सुखद बात क्या होगी। मंथरा चुप, बहुत अच्छी बात है। मंथरा कहती है बिल्कुल गलत, समझेगी कब तू। एक्चुअली में भरत का बेटा भी कभी राजा नहीं बन पाएगा। तो कैकई बोलती है अरे भरत के बेटे को राजा बनना क्यों है, भरत का बेटा राम के बेटे के आगे सेवा करेगा, ये मालिक बनना क्यों है। मंथरा चुप करो। कैकई ऐसे कह के चुप कराने का प्रयास करती है। मंथरा तब भी हार नहीं मानती। देखो ये बुरे लोग भी हार नहीं मानते जल्दी ऐसा नहीं है कि उन्हें फेलियर नहीं झेलना पड़ता। अरे शुद्ध भक्त के पास भी जाते हैं तो पहली बार में फेलियर होता है,
फिर फेलियर, पर ये प्रयास नहीं छोड़ते। मंथरा ने प्रयास करना नहीं छोड़ा। चौथी बारी पहुंची, बोली तुम्हें पता है अगर राम बन गया राजा तो कौशल्या हो जाएगी राजमाता, और वो हो गई राजमाता, तुझे सेवा करनी पड़ेगी उसकी, बर्तन धोइयो उसके, चापलूसी करियो उसकी। अभी तो दशरथ महाराज हैं, बाद में क्या होगा। यहां कैकेयी को हिट कर गई बात, यहां कैकेयी को हिट कर गई। ये मंथरा जैसे लोग हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। आ सकते क्या है, आते ही हैं। आप थोड़ी भक्ति करने लगते हो, राम की तरफ मुड़ने लगते हो, तो अड़ोसी पड़ोसी या कोई पारिवारिक जन को जाके बोलते, अरे अभी क्या उम्र है यार तुम्हारी, तुम्हें पता है नौकर बनाते हैं ये लोग, नौकर बनाते हैं। तो कोई क्या बोले, भाई नौकर ही तो बनने आया हूं। इस संसार में मालिक बनने तो बहुत लोग गए थे। सिकंदर भी गया था, उसामा बिन लादेन भी गया था, सद्दाम हुसैन भी गए थे, हिटलर भी गया था, मालिक बनने अलेक्जेंडर भी गया, सब मालिक बनने गए थे। क्या हाल हुआ। और जो दास बनना चाहता है उसका क्या हाल है, देखिए हनुमान जी का। राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं। दास इतना इंपॉर्टेंट है कि महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं वो कहते हैं मजा नहीं आ रहा, दास बनने में ज्यादा मजा है। तो भगवान दास का मूड लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस संसार में आ गए और ऐसे मजे कर रहे हैं। बोल रहे हैं आनंद यही है, आनंदम बुद्धिवर्धनम पूर्ण अमृता स्वादनम। तो जब मालिक दास बन के एंजॉय कर सकता है, वास्तविकता में एंजॉयमेंट यही है, मालिक की कोई एंजॉयमेंट नहीं है। एंजॉयमेंट तो दास की है, असली रस तो दास में है, असली रस तो इसमें है जो सेवक है। जो लक्ष्मण का आनंद है, लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नम। लक्ष्मण शब्द का अर्थ है जिसमें लक्ष्मी जिसके पास बहुत हो। अरे भाई लक्ष्मण के पास कौन सी संपत्ति है। देखा जाए तो लक्ष्मण तो दर दर भटक रहे हैं राम के साथ, इनको लक्ष्मी संपन्नों क्यों कहा गया। लक्ष्मण के पास एक संपत्ति है, सेवा की संपत्ति। इस संपत्ति में लक्ष्मण भरपूर बिलियनर, मिलियनर, ट्रिलियनर। तो वास्तविक संपत्ति भक्त के पास सेवा ही है। जिसके पास सेवा नहीं है वो बहुत गरीब है। जिसके पास सेवा नहीं है बड़ा अभागा है। जिसके पास सेवा रूपी धन है वास्तव में वही अमीर है। तो लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्नम, लक्ष्मी संपन्न है। तो भगवान राम को राज्याभिषेक होना है, पर मंथरा, उसका नाम ही मंथरा है, जो मथ दे, हृदय को चर्ण कर दे। अच्छा भला हृदय था, राम से इतना स्नेह करता था, इतना प्यार करता था, मंथरा ने आके विष घोल दिया है। तो गलती मंथरा की है या कैकेयी की। किसकी गलती है। दोनों की। कई बड़े बैलेंस है दोनों की गलती है। वैसे तो गलती दोनों की है, लेकिन कैकेयी, मंथरा जैसे लोग आप सबके जीवन में आएंगे। इस संसार में मंथराओं की कमी नहीं है, लेकिन हमें यह प्रूव करना है कि हम कैकेयी नहीं हैं। बस हमें यह प्रूव करना है कि हम कैकेयी नहीं हैं। लोग मथने का प्रयास करेंगे, वैष्णवों से दूर करने का प्रयास करेंगे, भक्तों से दूर करने का प्रयास करेंगे, भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे, लॉजिक भी देंगे, सब कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं,
लेकिन फिर भी प्रेम टूटे नहीं, फिर भी राम के प्रति आस्था छूटे नहीं। इसी को श्रद्धा कहते हैं, अटूट श्रद्धा, प्रगाढ़ प्रेम। हजार कारण हो छोड़ने के, फिर भी चिपके रहें, इसको प्रेम कहते हैं। तो मंथरा मथ गई और कैकेयी का हृदय परिवर्तित हो गया। वो राम जो जगत के स्वामी हैं, जगत के मित्र हैं, वो राम जो कैकेयी के प्रिय हैं, वो राम जिसके बिना कैकेयी जी नहीं सकती, वो राम आज इनके और भरत के बीच में शत्रु है। आज उस राम को घर से निकालने का प्रयास हो गया है। इतना स्नेह, तो इसीलिए भक्ति शुड बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब उसकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आप मेरे साथ ये करोगे तो मैं आपके साथ ये करूंगा, बस दैट्स इट। गलत। भगवान बहुत परीक्षाएं लेते हैं। एक भक्त के जीवन में आप देखोगे, भक्त का चरित्र, वो हमेशा कुछ भी चीज ऐसी उठपटांग कुछ गड़बड़ वाली होती है, वो बोलता है कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हारूंगा नहीं। कृष्ण मुझे पवित्र करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बड़ा सुंदर श्लोक है, ततते नुकंपान सुसुमिक्षमाणो भूजन निवात्मा हृदवीपकामा हृदवाग्वपिर्भूर्विददा नमस्ते जीवे तो यो मुक्त पद से दया भाग। हजार कैलेमिटीज आए, हजार परिस्थितियां आए, हजार परेशानियां आए, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है। अगर भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता रहता है, भक्ति नहीं छोड़ता, भक्त को नहीं छोड़ता, माला नहीं छोड़ता, जुड़ा रहता है, तो बोलते हैं ही हैज द राइट है, उसका अधिकार है कृष्ण। तो भगवान हमारी परीक्षाएं लेंगे। अयोध्या रिप्रेजेंट संस्कृति। भगवान राम हम सबके स्वामी हैं, देयर इज नो डाउट। खैर, एक एपिसोड हुआ, एक परीक्षा हो गई और राम को वनवास मिल गया। अगले दिन सुबह क्या बोलते हैं? अगले दिन सुबह सुबह राम तैयार होके आए हैं, पिता बोलते हैं राम को बुला लो, बुलाया तो बोलते हैं वनवास मिलेगा। सॉरी बेटा, सीईओ कोई और होगा। मान लो आपको बोला जाए कि एक दिन रात को पहले बुला के बताया जाए आप इस कंपनी के सीईओ बनोगे, और सुबह सुबह बुला के बोला जाए सॉरी आप नहीं थे, वो किसी और को देना था। आप कहोगे अरे क्या पागल हो गए हो, मैंने तो नाइट पार्टी भी दे दी मैं तो पार्टी भी कराया, अब बता रहे हो ये कोई तरीका है? इज दिस द वे? पहले नहीं सोचना चाहिए था? मान लो आपकी कोई लॉटरी लगे और जब आप लेने जाओ बोले सॉरी नंबर 003 नहीं 005 था, किसी और का था, आपका नंबर ले दिया, आप गाली दोगे उसको। पर आप भगवान राम का चरित्र देखो, संस्कृति। भगवान राम के चेहरे पे शास्त्र बताते हैं एक भी सर पे माथे पे एक भी झुर्री नहीं है, एक भी सिलवट नहीं है, एक भी त्रुटि नहीं पड़ी। एज इट इज, हाथ जोड़े और पिताजी को कहते हैं जो आज्ञा पिताजी। हे पिताजी, मैं तो बड़ा खुश हूं, मेरे बचपन से इच्छा थी कि मैं जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की सेवा कर सकूं, महात्माओं की सेवा करूं, और मैं हिचकता था कि कैसे पूछूं आपसे। आज आपने ये इच्छा पूरी करके मान लो मुझे वरदान दे दिया हो। Now this is what positive people are. When they face a calamity, when they face a reversal, when they face an agonizing situation, when they face atrocity, when they face a calamity, you will find them very grounded. Srila Prabhupada ji used to say, one's greatness can be seen in the way he handled provoking situations.
किसी की महानता तब दिखाई देती है कि वो ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या है। आप भगवान राम का रिएक्शन देखिए, अनमूव्ड, अनमूव्ड, कोई शिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं। ही इज absolutely the same as he was one day prior. When the news that he would be king was declared, he is absolutely same now. How is that possible? It is possible. I'll tell you why. Sanskriti, I'll tell you why. Ram was not attached to the post or position. Ram was attached to the instruction. Please understand. भगवान राम पोस्ट, पोजीशन, मान, सम्मान, धन, वैभव किसी चीज से आसक्त नहीं थे। उनकी आसक्ति तो आज्ञा से है। जिस व्यक्ति की आसक्ति इंस्ट्रक्शन से है वो अनमूव्ड रहेगा। पहले भी मैं पिता की आज्ञा पालन कर रहा था कि राजा बनूंगा तो राजा बन जाऊंगा, राजा से मेरे को कोई भोग नहीं है। पापा की आज्ञा मानना ये इंपॉर्टेंट है। और कहा गया आज तुम वन में वास करोगे तो वन में वास करूंगा। क्यों? ये भी पिता की आज्ञा है। राम इज अटैच टू इंस्ट्रक्शंस। इस संसार में लोग बिविल्डर या परेशान क्यों होते हैं? वो अटैच होते हैं चीजों से, वो अटैच हो जाते हैं लोगों से, वो अटैच हो जाते हैं परिस्थितियों से, वो अटैच हो जाते हैं अपनी मनोदशा से, वो अटैच हो जाते हैं। जिससे अटैच होना है उसको छोड़कर सब चीजों से अटैच हो जाते हैं। इसीलिए तो परेशान रहते हैं, इसीलिए तो गड़बड़ रहते हैं, इसीलिए तो टूटे फूटे रहते हैं। थोड़ा सा छेड़ दो फिर देखो पूरी एकदम बिल्कुल, they are absolutely like matchsticks. You rub them a little and they'll flare up. Immediately they'll flare up. Why? There is so much happening in their lives. Sanskriti. भगवान राम was attached to instructions. अगर हम भी चाहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हम अनमूव्ड हों, स सुखम दुखम धीरम स अमृतत्व कल्पते। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं जो सुखम दुखम धीरम स्थिर है दोनों में, स अमृतत्व कल्पते, वही पा पाएगा प्रसन्नता, सुख, वही प्राप्त कर पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राम वॉज अटैच टू पोस्ट, नो, पोजिशन, नो, वेल्थ, नो, फेम, नो. He was attached to instructions. So whenever you're attached to instructions, nothing wrong will happen. संस्कृति, अयोध्या की संस्कृति है। अब सीता लक्ष्मण और भरत इन सबको भी देख लो। लक्ष्मण ने जब सुना कि राम को वनवास मिल रहा है, लक्ष्मण बोला भैया मैं भी जाऊंगा। अब राम ने बोला लक्ष्मण वनवास मुझे मिला है, तुम्हें नहीं। लक्ष्मण ने बोला मैं तो परछाई हूं, आपसे जुदा हो ही नहीं सकता। सेवक कभी स्वामी से दूर नहीं हो सकता, प्लीज मुझे भी ले जाओ। राम ने कहा नहीं बेटा नहीं, यू विल नॉट गो। लक्ष्मण डट गए, सीता मैया के चरणों में प्रार्थना करने लगे। पता है जब राम से ना माने जाए तो राम के भक्त से बात करनी चाहिए। राम का भक्त ही वीजा सैंक्शन कर सकता है राम के साथ रहने का। खैर लक्ष्मण को वीजा सैंक्शन हुआ, भगवान राम मान गए। बहुत सुंदर संवाद है। लक्ष्मण तुरंत गए उर्मिला के पास, अपनी वाइफ के पास, और उर्मिला उस वक्त पेंटिंग कर रही थी कैनवस पे, भगवान राम की कोई चित्र बना रही थी। तो लक्ष्मण जाके उर्मिला को बोलते हैं कि हे
उर्मिला मुझे भैया के साथ जाना होगा। बड़े संकोच में बोलते हैं ऐसे, राम को वनवास हो गया। और जब जा रहे थे कक्ष में तो बहुत प्लान बना के जा रहे थे, मेरी बीवी ये बोलेगी तो उसको मैं ये जवाब दूंगा, अगर वो ये बोलेगी तो मैं ये जवाब दूंगा, अगर वो ये बोलेगी तो ये जवाब दूंगा, पूरी प्लानिंग करके गए थे। वहाँ जाके उर्मिला जब सुनती है कि राम वन में जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, तो उर्मिला खुद ही कहती है कि आपको भी जाना चाहिए, और सुनो अकेले जाओ। कैन यू इमेजिन अ वाइफ सेइंग कि आप चले जाओ सेवा के लिए? अगर हम होते लक्ष्मण की बीवी तो क्या बोलते हैं? बोले अरे उसको वनवास मिला है, बड़े भाई को, वो जाए जहां मर्जी, तू तो यहीं रहे, तुम्हें क्या करना है जाके? तुम्हें ज्यादा आफत आई हुई है, तुम्हें ज्यादा लगन लगी हुई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपना परिवार देखना है कि नहीं देखना है ना? डोंट वरी, आई नो। पर उर्मिला ने ऐसा नहीं कहा। उर्मिला ने कहा मैं जाऊंगी तो आपकी सेवा में बाधा होगी, आपको मेरी भी चिंता करनी पड़ेगी जंगल में, और मेरी चिंता करने से जो 24 घंटे राम का चिंतन होना है उसमें कमी आ जाएगी। यू गो, आप जाओ। लक्ष्मण की आंखें भर गई और लक्ष्मण धन्य हो गए। लक्ष्मण बोले धन्य है ये स्त्री जो मुझे राम की सेवा में जाने के लिए रोक नहीं रही, मोटिवेट कर रही है। मैं तो इतनी प्लानिंग बना के आया था कि ये बोलेगी तो मैं ये कहूँगा, ये बोलेगी तो ये कहूँगा, ये बोलेगी तो ये कहूँगा। इसने तो जीत लिया मेरे को, इसने मुझे जीत लिया। लक्ष्मण आलिंगन करते हैं उर्मिला का और बोलते हैं मेरा बड़ा सौभाग्य है कि जनक नंदिनी है उर्मिला है, आप मेरे धर्मपत्नी हो या आप उर्मिला मेरे साथ हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं इस बात से। संस्कार, अगर कोई भक्त सेवा में जा रहा है, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म उसकी अड़चन बनना नहीं है। एक गृहस्थ जीवन, गृहस्थ और गृहमेदी, इन दोनों में क्या अंतर है? जो गृहस्थ है वो मिलजुल कर भगवान की सेवा करता है, हस्बैंड वाइफ मिल के भगवान की सेवा करती है, और जो गृहमेदी है वो मिलजुल कर एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति करते हैं। दैट्स इट। एक को कृष्ण मिलेंगे, एक को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयन। गृहस्थ जीवन का अर्थ है राम की सेवा मिलजुल कर करना। जब जनक महाराज ने सीता मैया का हाथ राम को दिया था तो भगवान राम को जनरली ऐसा होता है कि लड़के के हाथ पे है ना लड़की का हाथ दिया जाता है, लड़के का हाथ पे लड़की का हाथ दिया जाता है कि अब मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। जनक महाराज ने उल्टा किया, राम का हाथ पकड़ के सीता के हाथ के ऊपर रखा और जनक महाराज ने कहा कि हे राम, ये धर्मचारिणी है। धर्मचारिणी का अर्थ है कि राम अगर तुम कुछ उल्टा पुल्टा भी करोगे ना, ये धर्म का मार्ग दिखलाएगी तुमको। ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, धर्मचारिणी है। धर्म जिस तरफ होगा, अगर आप भी हल्का सा इधर उधर करोगे तो ये आपको भी गाइडेंस दे सकती है। धर्मचारिणी है। इसकी चर्चा मैं तीसरे दिन करूंगा जब रिश्तों की बात करूंगा। तो लक्ष्मण धन्य हो गए। ये संस्कार हैं, संस्कार। वास्तव में ये जो सीता राम का वनवास जाना, ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये भगवान की ही प्लानिंग है। कुछ समय पहले जब भगवान राम नारायण के रूप में जब लक्ष्मी के साथ शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे, तो एक दिन लक्ष्मी मैया बोलती है, पैर संवाहन कर रही थी, पाद संवाहन करती करती बोलती है कि सुनो, मुझे थोड़ी प्रिवेसी चाहिए। प्रिवेसी, आई वॉन्ट सम प्रिवेसी। जैसे स्त्रियां बोलती भी हैं कि थोड़ी तो प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए हमारी। तो भगवान बोलते हैं, विष्णु भगवान बोलते हैं, अब इससे ज़्यादा प्रिवेसी क्या मिलेगी? हम हैं, आप हो,
क्या प्रिवेसी? बोले हम दोनों तो हैं, लेकिन जरा ऊपर देखो। बोले ऊपर क्या देखूं? तो ऊपर देखो। बोले देखो कौन है ऊपर? तो बोले ये 2000 आंखें हमेशा मुझे देखती रहती हैं। 1000 फन है शेषनाग के और हर फन में 2 आंख। बोले ये 2000 आंख लगातार ताकती रहती है कि मैं सेवा ठीक कर रही हूं कि नहीं। बोले कभी तो मुझे प्रिवेसी, थोड़ी सी प्रिवेसी आपके साथ एकांत में कुछ जगह समय मिले। तो भगवान ने तब प्रॉमिस किया था कि अभी तो नहीं मिल सकती, लेकिन भविष्य में जब मैं राम बन के आऊँगा तो तुम्हें ये सुख अवश्य प्रदान करूँगा, पर सुनो थोड़ी देर के लिए। लक्ष्मण वहाँ भी साथ आ गए थे। लक्ष्मण ने बोला छोड़ूंगा तो यहाँ भी नहीं, सेवक का काम है, कभी नहीं छोड़ूंगा, है ना, एकदम पकड़ के चलूँगा। तो खैर ये भगवान ने ऑर्केस्ट्रेट किया ये पास टाइम। पर संस्कार, अयोध्या संस्कारों की नगरी है। आपको थोड़ी दूर जरा अभी किष्किंधा लिए चलता हूँ। हालांकि अयोध्या पे भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन संस्कार है। पिता की आज्ञा, भाई का स्नेह, हाँ, माता की आज्ञा, गुरुवरों का आशीर्वाद, गुरु के प्रति समर्पण भाव, ये सब संस्कृति के लक्षण हैं। संस्कृति के लक्षण हैं। किष्किंधा इज प्रकृति। अयोध्या रिप्रेजेंट संस्कृति, किष्किंधा रिप्रेजेंट प्रकृति, और लंका रिप्रेजेंट विकृति। तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो तीनों लाइन में हैं। अयोध्या ऊपर है नॉर्दर्न इंडिया में, नीचे जाओगे साउथ इंडिया की तरफ आप पहुंचोगे किष्किंधा, किष्किंधा से नीचे जाओगे श्रीलंका। ये तीनों एक ही लाइन में हैं। तो अयोध्या और लंका, और उनके बीच में किष्किंधा। तो किष्किंधा प्रकृति है, ये कभी अयोध्या की तरफ जाती है तो कभी विकृति की तरफ जाती है। ये बीच में है हमारी, हम तटस्थ शक्ति है ना, जैसे एक तरफ भगवान है, एक तरफ मटेरियल संसार है, कभी भगवान की तरफ भागते हैं, कभी मटेरियल संसार की तरफ भागते हैं, प्रकृति है। तो किष्किंधा की कुछ बात बताता हूं आपको। किष्किंधा में राजा है वाली, आपने सुना है इसके बारे में? आप लोग जानते हो वाली को? अच्छा ठीक है, जानते होंगे भाई, उस जमाने में रहे होंगे आसपास साथ में, तो जान पहचान तो हो गई होगी। नहीं, भगवान ने कहा ना, ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था। तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है, बस इतना फर्क है। तो हम भी वहीं कहीं घूम रहे होंगे आस पड़ोस में। तो वाली वहाँ का राजा है, और वाली इज सो पावरफुल, वेरी पावरफुल। इनफैक्ट वाली को एक लॉकेट मिला हुआ है ब्रह्मा जी से, और वो गले में लॉकेट वाली का ऐसा लॉकेट है कि सामने वाले का आधा बल ये खींच लेता है। जो भी इससे लड़ने आएगा उसका आधा बल इसी के अंदर आ जाएगा। मान लो मेरे पास 100 है और आपके पास है 200, और मैं हूं वाली, और मैंने लॉकेट पहना है, तो आपका 200 का मेरे पास कितना आ गया? 100। मेरे पास ज्यादा हो गया आपसे फिर। तो वाली को कोई हरा ही नहीं सकता। वाली इज एक्सट्रीमली पावरफुल। रावण के साथ भी युद्ध हुआ था वाली का, रावण को बहुत मारा था वाली ने। तीसरे दिन इस कथा पे भी आऊंगा। लेकिन सुग्रीव की मुलाकात होती है भगवान राम से, ये दोनों पहुंच गए हैं, अब पहुंच गए हैं जंगल में। सीता राम लक्ष्मण, सीता का अपहरण हो गया है, 13 वर्ष हो चुके हैं, सीता का अपहरण हो गया है, जटायु वध हो गया है। ये सब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने अभी फटाफट, क्योंकि अभी 2 दिन और हैं, ये वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, डोंट वरी। तो रावण ले जा चुका, राम और लक्ष्मण दोनों अभी सीता को ढूंढ रहे हैं। सीता को ढूंढ रहे हैं तो मुलाकात होती है सुग्रीव से। सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता होती है। कैसे होती है ये कल बताऊंगा, क्योंकि कल तो सुग्रीव पर चर्चा थोड़ी होनी है। फेस योर फियर्स। कल हम भय पे जीत कैसे प्राप्त करते हैं, रामायण कैसे हमें भय से जीत की ओर ले जाती है, उस पर चर्चा होगी, उसमें डिटेल में करेंगे। फिलहाल इनकी मित्रता हो गई है।
अब वाली और सुग्रीव का युद्ध होना है। भगवान राम बोलते हैं सुग्रीव को, देखो भाई तुम मेरी मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सुग्रीव कहता है पहले आप करो। अब सुग्रीव क्या है, वो वानर। आप पूरी रामायण पढ़ोगे, कहीं बंदर शब्द यूज नहीं किया गया ना। वानरः, संस्कृत में वानरः संधि विच्छेद करके अगर इसका अर्थ समझा जाए तो वानरः का अर्थ है नर मतलब मनुष्य, वा मतलब आर यू ह्यूमन। सो इट इज अ प्रश्न, आर यू ह्यूमन? क्योंकि वानर कभी मनुष्य की भांति और कभी है राक्षसों की भांति, भी बीच बीच में इधर उधर विकृति संस्कृति के बीच में झूलते रहते हैं। इंद्र तृप्ति में इनका बड़ा मन लगता है। तो सुग्रीव ने कहा पहले आप करो। भगवान ने कहा ठीक है, मान गए। भगवान ने बोला चलो जाओ, वाली को ललकारो, मैं मार दूंगा। अब वाली और सुग्रीव दोनों भाई हैं और बड़े प्यारे भाई थे, एक दूसरे से बहुत स्नेह था। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, कम्युनिकेशन गैप मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ा देता है। वाली और सुग्रीव इतने अच्छे भाई थे, ऐसा कोई युद्ध नहीं होता था जहां दोनों साथ ना जाएं। लेकिन एक दिन इन दोनों के जीवन में दुंदुभी नाम का और मायावी नाम का एक राक्षस आ गया। यहां परिस्थिति पलट गई। खैर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई इन दोनों में। तो मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई कि वाली ने लात मार के भगा दिया है सुग्रीव को बाहर। अभी जानना चाहोगे आप वैसे कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? ये कथा सुनना चाहोगे या कल करेंगे इस कथा? बताओ, जैसे आपकी इच्छा। अभी जाने? अभी माता जी कह रही हैं अभी, ओके। तो थोड़ा सा मैं इसमें डीप डाइव करता हूँ। ये मत कहना कि प्रभु जी आपकी वजह से क्लास लेट हो रही है। बट आई विल स्टिल ट्राई टू बी क्रिस्प। ये दोनों बड़े प्यार करते हैं एक दूसरे को, दोनों भाई हैं। एक दिन एक राक्षस किष्किंधा में प्रवेश करता है। राक्षस बड़ा भयंकर है। वाली कहता है कि सुनो, मैं जा रहा हूं, राक्षस आया है, डिस्टर्ब कर रहा है हमारी प्रजा को, मेरा धर्म है, मार के आता हूं। सुग्रीव कहता है भैया आप अकेले? नहीं भैया मैं भी साथ जाऊंगा। वाली कहता है छोटे तुम यहीं रहो, मैं जाता हूं। अब कई बार ना ये वाली टाइप लोग जो है ना, ये क्रेडिट नहीं देना चाहते दूसरों को। इनको सारा क्रेडिट चाहिए। आपने सुना होगा कई बार लोग बोलते हैं आई वॉन्ट ऑल और नथिंग। ईदर आई वॉन्ट फुल क्रेडिट और आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एट ऑल। है वाली मेंटेलिटी। वाली said, no, you stay here. I am going to kill this demon and let my praja feel that I am the सर्वे सर्वा here. सुग्रीव कहता है भैया आपका उसकी पिटाई करोगे तो यहाँ आके एडवर्टाइज कौन करेगा? है I will do the advertisement. Please take me along. तो वाली कहता है हाँ ये सही है, चलो आ जाओ। सुग्रीव को लेके जाता है। अब जाते हैं आगे, राक्षस बड़ा भयंकर है। युद्ध होता है, भागते भागते वो पहुंच जाता है एक गुफा के अंदर। अब वाली कहता है सुग्रीव को तुम यहीं वेट करो, मैं जरा भी मार के आता हूं इसको। सुग्रीव कहता है ठीक है भैया। और वाली कहता है देखो जब तक मैं बाहर ना आऊं यहीं रहना। जी भैया। वाली जाता है अंदर। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, 1 महीना हो जाता है। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। अंदर क्या हो रहा है पता ही नहीं। 1 महीने बाद एक चीख निकलती है, बस तेज आवाज, इतनी तेज आवाज कि मैं अभी एक्टिंग भी नहीं कर सकता। इतनी तेज चीख निकलती है और एक खून की धारा बह निकलती है। अब सुग्रीव के मन में डाउट हो जाता है। देखो हमारे जीवन में नेगेटिव विचार सबसे पहले आते हैं, सच्ची बता रहा हूं। आपके पति थोड़ी देर लेट हो जाएं घर आने में, अच्छा विचार आता है नहीं प्रधानमंत्री से मिलने चले गए होंगे इसलिए लेट हो गए। नहीं, ऐसा विचार नहीं आता, उल्टा विचार आता है। बच्चा स्कूल से टाइम से ना पहुंचे घर, इतने बजे तक तो आ जाया करता था,
कहीं एक्सीडेंट नहीं हो गया, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं उठा के तो नहीं ले गया। कोई नेगेटिव विचार सबसे पहले या मनुष्य को घेरते हैं। सुग्रीव इज ऑल्सो लाइक दैट। ही थॉट वाली खत्म। अब जिसने वाली को तो कोई मार नहीं सकता क्योंकि लॉकेट है। वो आधा बल तो ले आया उसका, फिर वाली कैसे मर सकता है। लेकिन ये जो डाउट्स है ना, ये जो डाउट है, ये किसी क्लियर माइंड को भी अक्षपित कर देता है। ये क्लियर माइंड को भी अभिषिक्त कर देता है, उसको क्लाउड कर देता है, फिनिश कर देता है। क्लैरिटी इज फिनिश्ड। ही डेवलप्स डाउट, और वो क्या करता है, ढूंढता है पत्थर 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 कहां से लाऊं। बड़ा सा पत्थर निकाल के उस गुफा का मुंह बंद करता है, उसके ऊपर एक और पत्थर रखता है, उसके ऊपर तीसरा पत्थर रखता है, ऐसे सील कर देता है कि कोई आ ही ना पाए बाहर। रोता हुआ, गंभीर कदमों से, भारी कदमों से, मुंह लटकाया हुआ किष्किंधा के राज दरबार में प्रवेश करता है। बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है मरे की खबर लाया है ना। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है। सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो कथा सुना एडवर्टाइज कर देता है। बोलता है वाली अब नहीं रहे, ऐसे ऐसे हुआ। सारे लोग शोक मनाते हैं, पूरी सभा शोकित हो जाती है, मौन रखे जाते हैं। फिर बड़े मंत्रीगण आके बोलते हैं सुग्रीव को कि आप राजा बन जाइए, क्योंकि अगर देश में राजा नहीं है तो आस पड़ोस के मुल्क उस पर अटैक कर सकते हैं। इसका राज्याभिषेक होता है, राजा बनता है। इतनी देर में धड़ाम धड़ाम करती हुई आवाज आती है। राज दरबार पे लात मार के कोई दरवाजा खोलता है, वो और कोई नहीं है, वाली है। और वाली देखता है थ्रोन पे बैठे हुए किसको, सुग्रीव को, और सर को देखता है तो मुकुट। बस दिस वॉज इनफ फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। सुग्रीव जैसे ही देखता है भैया आए हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, भागता हुआ जाता है, प्रणाम करता है भाई को। भाई लात मारता है, बोलता है मुझे समझ में आ गया, अभी मेरे को समझ में आ गया, पत्थर रखने वाला तू ही था। समझ में आ गया, तेरे मन में चोर था, तू राज्य हड़पना चाहता था, इस कारण तूने वहां पर पत्थर में मुझे कैद किया, उस गुफा में। मैं समझ गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुग्रीव कहता भैया सुनो तो, ढिशुम, अरे सुनो तो, भिशुम, अरे सुनो तो, हिलना दे, सुनो तो, अरे सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो, अरे सुनो तो बाबा। कोई नहीं सुनाई दिया। इतना पीटता है वाली, सुग्रीव लहू लुहान होता हुआ भाग जाता है वहां से। जैसे ही भागता है, वाली कहता है देखा, चोर था इसके मन में। अगर इसके मन में चोर नहीं होता तो भागता क्यों? भागता तो वही है जिसके मन में चोर है। इसके मन में चोर है, और सारी प्रजा को बोलता है देखो देखो देखो, इसका षड्यंत्र है, और सुग्रीव के पीछे भागता है। सुग्रीव कहां कहां नहीं छुपता, हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कम्युनिकेशन का मौका तो दो, बातचीत करने का मौका तो हो। जनरली जब लोग लड़ बैठते हैं ना, तो आजकल तो खैर नए नए टेक्निक्स हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तेरा व्हाट्सएप ब्लॉक किया, मैंने तेरा ब्लॉक किया, तूने मेरा ब्लॉक किया, फोन नंबर ब्लॉक, नंबर इरेज्ड। अरे अगर लड़ाई हुई है तो ब्लॉक से काम नहीं होगा, कम्युनिकेशन बढ़ाने से काम होगा। कम्युनिकेशन गैप्स, जो ये प्रॉब्लम्स है ना, ये इसको घटाएगा नहीं, बढ़ा देगा। रामायण सिखाती है नहीं। सो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अगर किल करना है तो और पास आना चाहिए। डू नॉट लेट कम्युनिकेशन गैप ग्रो। किष्किंधा प्रकृति है, पर प्रकृति है ना, हम सब प्रकृति में ही हैं। इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी इधर लड़ते हैं, कभी उधर लड़ते हैं। तो भगवान से मुलाकात हो गई सुग्रीव की, मिसअंडरस्टैंडिंग पता है भगवान को। भगवान बोलते हैं मार दूंगा मैं उसको, चिंता मत करो। बोले कब? बोले कल। बोले कल? बोले हाँ। बोले जाओ ललकारो। बोले मैं? बोले हाँ हाँ तुम जाओ।
वाली को ललकारो, मैं पीछे से मार दूंगा। अब सुग्रीव बड़ा चौड़े होके जाता है, ए वाली बाहर निकल। अंदर से वाली सोचता है बॉर्नवीटा पी के आया है, इसको क्या हो गया भाई, ये तो रोज पिटता है मेरे से, आज इसमें इतना अहंकार कहां से आ गया। वाली बाहर निकलता है और युद्ध शुरू होता है। ऐसा युद्ध होता है कि सुग्रीव फिर पिटता है और भगवान पिटता हुआ देखते हैं उसको। अब जब बिल्कुल मरने वाला होता है सुग्रीव भागता है और आके भगवान राम के पास खड़ा होता है, बोला पिटवा दिया मेरे को। अरे राम ने मरवा दिया था, आज मर गया होता मैं आज, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो भगवान राम बोलते हैं वो एक्चुअली मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तुम दोनों वानर हो ना, एक जैसे लगते हो। आपने कभी वानरों को देखा होगा तो भले उनका नाम सन्नी मन्नी सोनू गोलू मोनू टोनू पोनू कुछ भी रख दो, 2 मिनट बाद देखोगे भाई कौन सा सोनू था कौन सा मोनू था। ये धोखा हम खा सकते हैं, भगवान नहीं। तो फिर भगवान राम क्यों कह रहे हैं कि मैंने पहचाना नहीं, इसका रहस्य कल खोलूंगा, आज नहीं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो बोलते हैं कैसे पहचानोगे। तो भगवान राम लक्ष्मण को बुलाते हैं, लक्ष्मण इधर आओ, ये जो गुंज फूलों की माला दिख रही है ना, एक माला बनाओ। तो लक्ष्मण माला बनाते हैं, बोले अब इसको पहनाओ। तो सुग्रीव झुकता है, गले में माला पहनते हैं। अब लक्ष्मण को क्यों बोला माला पहनाने के लिए, इसका रहस्य भी कल खोलूंगा। अभी माला पहन ली, भगवान बोलते हैं अब जाओ, नाउ यू गो, और एक बार फिर ललकारो उसको। सुग्रीव देखता बोलते पक्का ना, अभी पुराने स्टिचेस ही नहीं भरे, अभी इधर भी स्टिच लगा है इधर भी लगा है, अभी पक्का ना। बोलते हैं भगवान बोलते हैं जाओ अब मारूंगा मैं उसको। प्रकृति ना इधर का है ना उधर का, ना इधर विश्वास है ना उधर विश्वास है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि सुग्रीव ने जब भगवान राम से मित्रता की तो भगवान राम से मित्रता ऐसे नहीं करी, भगवान राम का भी टेस्ट लिया, नाना प्रकार से भगवान राम का टेस्ट लिया। जीव आत्मा भगवान की परीक्षा लेने लगती है, ऐसी प्रकृति है। हम देखते हैं आजकल भी लोग मंदिरों में आते हैं। पहले तो खैर जब मैं छोटा था तो माँ के साथ जाया करता था, तो मम्मा पहले बोलती थी बेटा यहाँ थोड़ा सा पैसे डालो, भगवान से थोड़ी प्रार्थना करो, और फिर घर चलते थे। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अब देखता हूँ अब पैसे नहीं डालते लोग, अब बोलते हैं भगवान पहले मनोकामना पूरी करो तब दूंगा, ऐसे थोड़ी दे दूंगा, वेस्ट हो गए तो। यहां भी क्रेडिट सिस्टम है, भगवान पे विश्वास ही नहीं है, क्रेडिट सिस्टम है। बोले पहले पूरे करो फिर 100 रुपये प्रसाद चढ़ाऊंगा, पहले कर दो फिर चढ़ाऊंगा, विश्वास ही नहीं रहा। प्रकृति ऐसे ही सुग्रीव प्रकृति है, उसको विश्वास नहीं है। खैर लक्ष्मण माला पहनाते हैं, ये चला जाते हैं, और उसके बाद युद्ध होता है, वाली मारा जाता है। कल इस पे गंभीर चर्चा करेंगे। वाली मरता है, सुग्रीव को राज्याभिषेक तो पहले ही भगवान कर देते हैं। खैर राज्याभिषेक होता है, राजा बन जाते हैं। चतुर्मास शुरू हो जाता है, भगवान राम कहते हैं अभी चतुर्मास शुरू हो गया, मैं थोड़ा अभी भजन इत्यादि करूंगा, 4 महीने बाद हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। सुग्रीव भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं सीता को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा, और प्रॉमिस करके भूल जाते हैं। हमारी तरह हम भी रोज भगवान को बोलते हैं मैं 16 माला करूंगा, भगवान अच्छे से करूंगा, मैं बहुत अच्छे से, भगवान अब मैं अपने जप को प्राथमिकता दूंगा, भगवान अब मैं अपनी सेवा को प्राथमिकता दूंगा, भगवान अब मैं ये करूंगा, भगवान अब मैं ये करूंगा, मैं कल से कंठी पहनूंगा, भगवान मैं कंठी की इज्जत रखूंगा, भगवान मैं ये करूंगा। शाम तक आते आते मैंने कल कहा था ना भगवान, आज थोड़ी कहा था, कल करूंगा भगवान, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, पक्का प्रॉमिस। प्रकृति सुग्रीव भूल गए कि उन्होंने भगवान को प्रॉमिस किया है। तारा और अंबा के साथ
आनंद में लिप्त हो गए, भोग विलास करने लगे। 4 महीने बीत गए, राम को वचन दिया है। प्रकृति प्रॉमिस करके भूलती है। कभी इधर जब राम के पास थे तो हाँ राम हम करेंगे, जैसे ही राम से थोड़ी दूर हुए संसार की इंद्रिय तृप्ति खींच के ले जाती है। प्रकृति है। किष्किंधा रिप्रेजेंट प्रकृति। लक्ष्मण को भगवान राम भेजते हैं, लक्ष्मण को बोलते हैं राम बोलते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाओ। अभी राम गुस्से में है। आपको पूरी रामायण में भगवान राम बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखेंगे नहीं, बड़ी काम कंपोज्ड पर्सनैलिटी है। लेकिन राम थोड़े गुस्से में बोलते हैं, लक्ष्मण जाके उस सुग्रीव को कह दो कि जिस रास्ते से वाली को मैंने नरक भेजा है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। लक्ष्मण को पहली बार राम की इंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि आज तक तो ये गुस्से में ही होते थे। जब राम को वनवास मिला तो भगवान राम को लक्ष्मण जाके बोलते हैं, पिताजी को उड़ा दूं क्या? एक आज्ञा दो भैया, राज्य तो रात को ही तुम्हारा हो गया था, अब आप राजा हो, आदेश दीजिए इस देशद्रोही को मैं मार दूं। अपने पिता के बारे में कह रहे हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण शांत। जी भैया। ये तो अति क्रोधी है ही, इट कम्स नेचुरली। और भगवान राम रोकते आए हैं, नहीं नहीं नहीं। आज पहली बार राम ने कहा है जाके गुस्सा करके आओ। लक्ष्मण इज सो हैप्पी। लक्ष्मण कह रहे भगवान बोलना क्या है, पहुंचा ही दूं क्या? भगवान राम कह रहे लक्ष्मण बोलना है, करना नहीं है। अभी सुग्रीव से बहुत कार्य कराने हैं। जी भैया। अब ये जाके पहुंचने लगते हैं। जब पहुंचने लगते हैं तो हनुमान को खबर हो जाती है। खैर हनुमान जाके तारा को बोलते हैं कि लक्ष्मण भैया बहुत गुस्से में आ रहे हैं, आपके पति को कोई नहीं बचा सकता, एक ही चीज़ है जो बचा सकती है, जैसे ही दरवाजा खोलो चरणों में लौट जाओ और लौट जाओ, चरण पकड़ो और बोले क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अभी से मैं चीज़ शुरू कर दूंगा। जब गलती करो तो क्षमा मांगनी चाहिए, और केवल क्षमा नहीं मांगनी चाहिए, सॉरी नीड्स चेंज, लव नीड्स एक्शन। अगर हम किसी को प्रेम करते हैं ना तो हमारे एक्शन में भी दिखना चाहिए। इट कैन नॉट बी लिप सर्विस। आप पापा को बोलो पापा आई लव यू, पापा बोले बेटा पानी पिलाना, अपने आप ले लो। बट सुनो पापा, इधर आओ पापा, आई लव यू पापा। घंटी बजे घर की, टिंग टोंग, पापा बोले बेटा जरा देख के आना कौन है, खुद देख लो। बट सुनो पापा, आई लव यू यार। What kind of a love is this? Love needs action. आपके एक्शंस में दिखना चाहिए स्नेह। And sorry needs change. जब कभी हम गुरुवर के सामने, गुरुजनों के सामने, भक्तों के सामने क्षमा मांगे तो बदलाव तुरंत दिखना चाहिए, तुरंत बदलाव होना चाहिए। सुग्रीव ने तुरंत चरणों में लेट गए, लक्ष्मण को जीत लिया, मना लिया और बोले कल सुबह से कार्य शुरू करूंगा। किष्किंधा प्रकृति है, प्रॉमिस रखना, प्रॉमिस तोड़ना, प्रॉमिस रखना, प्रॉमिस तोड़ना, यही चल रहा है। अब आपको थोड़ा लंका की ओर ले चलता हूं 10 मिनट। अयोध्या समझ में आ गई? अयोध्या कौन सी नगरी है? संस्कारों की नगरी है, संस्कार है। किष्किंधा बीच में है, प्रकृति है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। कभी कोई बोलता है चले मंगला आरती, चले मंगला आरती, हाँ हाँ चलो चलो। और फिर कोई दोस्त बोलता है चलें क्या सिनेमा, तो बस वही हमारी सारी टाएं टाएं फिस हो जाती है। प्रकृति है। अभी लंका, लंका रिप्रेजेंट विकृति। विकृति, विकृति मतलब दुर्बुद्धि। लंका में सिर्फ मी एंड माइन, दैट्स इट, मैं और मेरा। आपको मालूम है लंका में हर घर में एक मूर्ति की पूजा होती है। हर लंका के घर में एक ही मूर्ति, एक मूर्ति हर एक के घर में। भगवान की नहीं है, पता किसकी है? जो व्यक्ति रहता है उसी की।
वो अपनी ही मूर्ति की पूजा करते हैं। क्यों? मी एंड माइन, दिस इज द फिलॉसफी। बस जो मुझे अच्छा लगे वो ले लो। अभी सुरपंखा की बात करते हैं। सुरपंखा को जानते हो? जानते ही होंगे, मतलब अब तो रिश्ता तो खैर मतलब था ही पुराना, हमारा संबंध सबके साथ ही है, वहीं रहे होंगे हम कभी। तो सुरपंखा, उसका वैसे नाम सुरपंखा है पर लोग उसे सुरपनखा कहते हैं। शास्त्रीय नाम उसका सुरपंखा। सुरपंखा का अर्थ होता है बहुत सुंदर नाखून वाली, जिसके नाखून बहुत लंबे लंबे हों, बहुत लंबे लंबे नाखून हों जिसके, उसको बोलते हैं सुरपंखा। आजकल तो लोग नेल आर्ट वार्ट जो भी आप लोग कहते हो, मैं क्या बताऊं अब आपको। तो वो हम सब किसके फॉलोअर हैं, फिर मैं ये भी क्या बोलूं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े बड़े नाखून रख के उसमें थोड़ा डिज़ाइन विज़ाइन जो भी बनाते हैं, तो हम सब सुरपंखा के पद चिन्हों पे बहुत सुंदरता से चलते हैं। खैर, डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट ग्लोरीफाइंग सुरपंखा। तो सुरपंखा एक दिन रावण के पास आती है। आपको पता है पुरानी उसके आगे की कथा, या उसको विस्तार से दूसरे तीसरे दिन में होगी, पर नाक कटा हुआ है। किसने काटा है? लक्ष्मण ने। मुझे तो पता है, आप वहीं थे, मैं जानता हूँ। लक्ष्मण ने खैर काट दिया है नाक। अब नाक काट दिया है, अब नाक कट गया है तो बहुत गुस्सा आया है। जहाँ नाक गिरी थी, नासिक, महाराष्ट्र के पास जो नासिक जगह है, वहाँ सुरपंखा की नाक गिरी थी, वहीं से उसका नाम नासिक पड़ा। तो नाक कट गया है, अब सुरपंखा बहुत गुस्से में है। क्यों? एक्चुअली सुरपंखा ने जब वायु मार्ग से जा रही थी, है ना, तो देखा भगवान राम को। ओहो, क्या सुंदर मूर्त है। अब राम भगवान तो ऐसे सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि, ऐसे करोड़ों करोड़ों कामदेव को देख के मूर्छित कर दें जो, ऐसे भगवान राम का, कृष्ण का सौंदर्य है। उनको कोई देखे और कैसे टिकटिकी ना लगे, ये प्रश्न है। तो ये सुरपंखा जा रही थी वायु मार्ग से, जैसे ही राम को देखा, ओहो, लव एट फर्स्ट साइट। आजकल संसार में होता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, वो अलग बात है, देन डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये भी होता है। दे गेट लव एट फर्स्ट साइट एंड देन डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। ऑल्दो सुरपंखा रिप्रेजेंट राक्षस वृत्ति रिप्रेजेंट मी एंड माइन। मेरी इंजॉयमेंट, मुझे जो अच्छा लगे मुझे चाहिए, बस दैट्स इट। सुरपंखा ने राम को देखा, मोहित हो गई। भगवान राम के पास नीचे भेष बदल कर आई, बहुत सुंदर कन्या बनकर आई। हाँ, एक जगह वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भूल गई वेश भी बदलना। इतनी मोहित हो गई राम से कि ऐसे ही उतर आई नीचे। लंबे लंबे दांत हैं, बाल कंघी हुई नहीं, आप सोच सकते हो। और राम को बोल रही है, विल यू मैरी मी? डायरेक्ट प्रपोज। अरे तू भाई, तो पहले सोच ले कौन सी जाति है, कौन सी प्रजाति है, मानेंगे नहीं मानेंगे, पता पूछ ले, कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं, बस सीधा विल यू मैरी मी। भगवान राम भी हंसने लगे। अब भगवान राम बोले, देखो हे सुंदरी, देखो भगवान भी मजे बहुत लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी दांत इतने बड़े बड़े हैं, हाथ ऐसे, आंखें, वो कह रही हे सुंदरी। भगवान राम बोल रहे, उधर देखो उधर। तो सीता को दिखाते हैं, मैं तो शादीशुदा हूँ और मैंने इस जन्म में एक पत्नी व्रत भी लिया है, एको पत्नी व्रता। आई एम ओनली अटैच्ड टू वन वुमेन, दैट्स इट। तो गुस्सा आती है थोड़ा सा वो, पर वो राम फिर कहते हैं, लगता है गुस्सा आ गया। तो लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं, उनसे पूछ लो, ही सिंगल, एटलीस्ट हेयर ही सिंगल। शूर्पणखा जब लक्ष्मण को देखती है, ओहो क्या सौंदर्य है, बाजू हैं, वक्षस्थल, क्या सुंदर चितवन, ऐसा वो। अब तो यहाँ लट्टू। लक्ष्मण के पास धीरे धीरे चलती हुई मोहित, और लक्ष्मण के पास जाके भी बोल देती है, क्या विल यू मैरी मी? बिल्कुल एकदम वही, एक और प्रपोजल रेडी।
अब लक्ष्मण तो मुस्कुरा देते हैं, लक्ष्मण कहते हैं ओह यस, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले समझ लो करना क्या होगा। बोली मैं कुछ भी कर सकती हूँ आपके लिए। बोली हाँ बताते हैं, सुबह उठना होगा मंगला आरती के लिए, सुबह सुबह उठते ही भगवान राम के लिए सेवा करने के लिए जंगल जाना होगा, लकड़ियाँ लानी होंगी, लकड़ियाँ ला के लाना होगा, फिर खाना बनाना होगा, ये बनेंगी, उसके बाद उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी, प्रोटेक्शन करने के बाद जंगली जानवर ना आ जाएं वो देखना होगा, फिर उनकी बेड लगाना होगा, फिर छाया देनी होगी, फिर पत्ते ढूंढने होंगे, फिर पूरी सेवा लिस्ट, मंगला आरती से शयन आरती पूरी फटाफट पूरी लिस्ट दे देते हैं। वो कहती है पागल हो गए, मुझे तुम चाहिए। बोलते तो मैं तो रेडी हूं, लेकिन सेवा करनी होगी। गुरु का धर्म है हर व्यक्ति को भगवान राम की सेवा में लगाए। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। युक्तस्य भक्तांश, हर व्यक्ति को, माधवेंद्रपुरी अपनी कथा में कहते हैं जब गोपाल जी का उद्घाटन करते हैं वो, कि सहस्त्र हाथ चाहिए मुझे इनकी सेवा के लिए, सहस्त्र हाथ। तो गुरु को सहस्त्र हाथ चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण रिप्रेजेंट गुरु। राक्षस वृत्ति का व्यक्ति भी आए, उसको भी राम की सेवा में नियुक्त करने की जो चित्त है, जो हृदय है, वो केवल गुरु के पास है। हम लोग बैठे सोच सकते हैं ऐसे व्यक्ति को क्यों सेवा दे दी, ये तो पागल है, ऐसे व्यक्ति को क्यों लगा रखा है सेवा में, ये तो चोर है, ऐसे व्यक्ति को क्यों लगा रखा है, डाकू है, ये ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर ही ना, हमारे पास तो पूरा बायोडेटा है। गुरु का अर्थ है राक्षस वृत्ति के व्यक्ति को भी सेवा में नियुक्त करना। लक्ष्मण उनको सेवा में देने लगते हैं, शूर्पणखा मानती नहीं है, बोले मैं सेवा नहीं करूंगी, मुझे तुम चाहिए। लक्ष्मण कहते सेवा नहीं करोगी, फुटो यहां से, गेट आउट, वी ओनली वांट सर्वेंट्स। फिर राम के पास चले जाती है, बोले माना नहीं, तुम ही आ जाओ। राम कहते हैं मैंने तुम्हें कहा ना हे सुंदरी, मैं तो ऑलरेडी अटैच्ड हूं, ऑलरेडी सीता है मेरे पास। इस वक्त शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है मेरे और राम के बीच में कौन, सीता। बोले इसे खा जाती हूं। ये एको पत्नी व्रता ही तो है, जब वो एक पत्नी रहेगी नहीं तो मुझे पत्नी बना लेना, तो एक पत्नी व्रत भी पूरा रहा तुम्हारा। शूर्पणखा जैसे खाने लगती है या भागती है सीता मैया की ओर, लक्ष्मण को भगवान इशारा करते हैं, लक्ष्मण। लक्ष्मण तुरंत तलवार निकालते हैं, नाक काट देते हैं उसकी। अब किसी की नाक कट जाए तो क्या करे वो, सीधा भाग के जाती है, उड़ती है, भागती है रावण के पास, बहन है ना रावण की, और रावण के पास जाके बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है। जब रावण की सभा में पहुंचती है तो रावण पूछता है क्या हुआ। अब देखो कितनी शैतान है, कितनी बुद्धिमान भी है। क्या बोलती है, रावण को बोलती है, ये नहीं बोलती मेरा नाक कट गया, बोलती है रावण की बहन का नाक कट गया, रावण की बहन का। तो ईगो को हर्ट कर रही है रावण की। पता है ना कि रावण ऐसे थोड़ी मानेगा, जब तक रावण को रावण सुनाई नहीं देगा तब तक हलचल नहीं होगी। अहंकारी व्यक्ति को उसके अहंकार को जगाना पड़ता है। रावण की बहन का यह हाल हुआ तो रावण पूछते हैं किसने किया और क्यों हुआ। तो बोलती है देखो मैं बताती हूं पूरी, मैं ऊपर से जा रही थी वायु मार्ग से, मैंने एक परम सुंदरी देखी, क्या बाल थे उसके, क्या आंखें थी उसकी, बहुत सुंदर सीता का वर्णन करती है। बोलती है मैंने उसको आपके लिए उठा के ले जाना चाहा भैया, मुझे लगा इतनी सुंदर स्त्री केवल रावण की होनी चाहिए, और मैं जैसे ही उसे उठाने लगी ये दो भाइयों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मेरा ये हाल बना दिया। Look at the advertisement that she is doing. This is nothing short of what TV ads tell us at this day and age.
टेलीविजन पे एड्स कैसी आती हैं, तुम ये ले लो तो एकदम खुश हो जाओगे, इसे करने से है ना, क्लोजअप करो तो 2 किलोमीटर दूर तक आपकी सांस में से अच्छी खुशबू आएगी, सारे लोग आपको अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसी तो एडवर्टाइजमेंट होती हैं। और क्या एडवर्टाइजमेंट है? आपकी इंद्रियों को खींचने की एडवर्टाइजमेंट होती है। किसी तरह आपकी इंद्रियों को खींच लिया जाए अपनी तरफ ताकि यू आर फोर्स्ड टू बाय। शूर्पणखा वॉज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। शूर्पणखा ने क्या किया? मी एंड माइंड प्रिंसिपल को और जगा दिया। रावण को कहा भैया मैं तो आपके लिए कर रही थी, उन दोनों भाइयों ने देखो क्या किया। अब रावणा, हु वाज रावणा? रावणा वाज लस्ट personified. He did not listen to anyone. रावण ने कहा अच्छा और बताओ कैसी सुंदरी थी? तो शूर्पणखा ने कहा ऐसे नयन थे, ऐसी भुजाएं थी। भगवत गीता कहती है ध्यायतो विश्यान पुंसान संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते। When you contemplate on the sense objects, when you keep contemplating on the sense objects, you develop attachment. आपको अटैचमेंट हो जाती है। तो रावण रात भर सोचता रहा, इतनी सुंदर, ऐसे आंख होंगी उसकी, ऐसे बाल होंगे उसके, ऐसी सुंदरी, ऐसी सुंदरी। कंटेम्पलेट। आप जिस चीज के बारे में बहुत सोचते हो, विचार करते हो, आपको उससे अटैचमेंट हो जाती है। और फिर आपके और उस अटैचमेंट के बीच में जो भी है वो आपका शत्रु प्रतीत होता है। अरे वो राम जो संपूर्ण जगत के धाता, भ्राता, सब कुछ है, परम हितैषी, परम सुहृद, परम मित्र हैं, आज रावण के शत्रु हैं। रावण कह रहा है इन दोनों को मार दो तो वो स्त्री मुझे मिल जाएगी, वो स्त्री मुझे मिल जाएगी। ये है रावण मेंटेलिटी, ये है विकृति। मुझे चाहिए। किसी के हाथ में अच्छी घड़ी देखो, मुझे चाहिए। किसी की अच्छी शर्ट देखो, मुझे चाहिए। किसी का अच्छा सूट देखो, मुझे चाहिए। किसी का अच्छा नेकलेस देखो, मुझे चाहिए। किसी की अच्छी गाड़ी देखो, मुझे चाहिए। किसी का अच्छा घर देखो, मुझे चाहिए। ये जो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये रावण वृत्ति है। रावण कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है। रावण इज दिस कॉन्शियसनेस। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई डिजर्व दिस, आई नीड दिस, दिस इज मी, दिस इज माइन, आई वॉन्ट टू हैव दिस। दिस इज रावणा मेंटालिटी, विकृति। अब वहां अकेला रावण नहीं है, लंका में सभी ऐसे हैं। हर एक व्यक्ति ऐसा है, सिर्फ अपनी 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 पड़ी है। अयोध्या में अपनी अपनी नहीं पड़ी। लक्ष्मण को अपनी क्या पड़ी है? सीता को अपनी क्या पड़ी है? उर्मिला को अपनी क्या पड़ी है? ये सब राम की सोच रहे हैं। संस्कार, यहां सबको अपनी अपनी पड़ी है, विकृति है। और किष्किंधा वाले बीच में, कभी संस्कृति की ओर तो कभी विकृति की ओर, कभी भगवान की ओर तो कभी भौतिक इच्छाओं की ओर, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इसलिए वानरा, आर यू ह्यूमन? तो रामायण बहुत बहुत गहरा ग्रंथ है। हर एक एपिसोड के पीछे बहुत गहरा रिश्ता। कल मैं आपको कुछ ऐसे एपिसोड्स की तरफ ले जाऊंगा, हर एक जगह एक इतनी डीप लर्निंग आपको। कल आप भय से मुक्ति के विषय में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस संसार में हम भय मुक्त हो सकते हैं। भगवान गीता के 16वें अध्याय के पहले ही श्लोक में बोलते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च दग्नश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। शुरुआत ही देवी गुणों की करते हैं। पहला देवी गुण है अभय, भय से मुक्ति।
अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस है, अगर कोई भक्त है, अगर कोई विश्वास करता है कृष्ण पे, भगवान पर, तो सबसे पहली क्वालिटी उसके अंदर जो प्रकट होगी वो होगी अभय। अभय, भय से दूर, भय मुक्त होते हैं भक्त। तो कल हम हनुमान जी और सुग्रीव और राम की कथा से कुछ भय मुक्त होने के गुण सीखेंगे। आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। हमने चर्चा करी कि यह रामायण केवल भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व में इसका कनेक्शन है। कैसे मैं आपको यूथोपिया, बाली, यहाँ इंडोनेशिया इत्यादि कई जगह ले गया, वहाँ पर किस प्रकार रामायण के अंश पाए जाते हैं, थाईलैंड एटसेट्रा। उसके बाद हमने पढ़ा संस्कृति, विकृति और बीच में किष्किंधा जो है प्रकृति। किस प्रकार ये तीनों हमें इधर उधर खींचते हैं, किस प्रकार संस्कार किसे कहते हैं, विकार किसको कहते हैं, और बीच की परिस्थिति प्रकृति किसको कहते हैं। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, वो इधर उधर भटकती है, लेकिन आप जिस तरफ अपनी ऊर्जा ले जाओगे, संस्कारों की तरफ जाओगे तो राम कृपा होगी, और अगर विकारों की तरफ जाओगे तो हो सकता है रावण कृपा हो। तो आपको किसकी कृपा चाहिए, हाँ? ये विचार आप स्वयं कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।